કમિટી તરફથી અને અમારા બધા તરફથી થેન્ક યુ સો વેરી મચ કે આવા સરસ કરોનામાં જ્યારે બધા અટવાયેલા છે ત્યારે કરુણાના ગાઈડન્સ માટે તમે આટલી સરસ ઓપોર્ચ્યુનિટી અમને લોકોને બધાને આપી છે. અમને બધાને સારું ગાઈડન્સ આપશો તે માટે રિયલી થેન્કફુલ ટુ યુ, કાનજીભાઈ, વિક્રમભાઈ બધા. અને આઈ વિશ કે બધા એકવાર જોરદાર તાળીઓ વગાડે તો એકવાર તાળી વગાડી આપણે ડોક્ટર સાહેબનું સ્વાગત કરીએ. અને ડોક્ટર રાકેશ શાહ એમની લગભગ કાનજીભાઈ થોડીક તો ઇન્ટ્રોડક્શન આપી જે પ્રમાણે હી ઇઝ અ વેરી 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 વેલ નોન ડોક્ટર ઇન એટલાન્ટા અને આપણા આર્ટિસ્ટ માટે બહુ જ હિતેચ્છુ છે. અને દરેકે દરેક આર્ટિસ્ટ એમના ઘરે ઓલવેઝ જાય છે તે જાણીને મને ખૂબ જ આનંદ થયો. વાઇઝ ડોક્ટર છું પણ જીવ કલાકારનો છે મારો. वेरी गुड. क्या हुआ कि थ्री वीक्स अगो मैंने साबरमती, जहाँ से मैं हूँ वहाँ का जो पूरा ग्रुप है उसके लिए मैंने गुजराती में कोरोना का प्रोग्राम किया था. तो कई आर्टिस्टों ने देखा, स्पेशली जो मेरे टीचर है कांजी भाई जिनसे मैं थोड़ा म्यूजिक सीखता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये आइडिया बहुत अच्छा है, अब हमारे आर्टिस्ट को. तो फिर उनसे बात हुई, फिर विक्रम भाई से बात, तीरथ राठौड़ से भी बात. तो ये मेरा अकेले का एफर्ट नहीं है, इसमें सब मिले हुए हैं, पूरा टीम वर्क है. जैसे कि विक्रम भाई है, जयेश भाई है, पंकज भाई है, कांति भाई. तो इसकी वजह से ये प्रोग्राम मुमकिन हुआ है. तो अभी हम सीधे पॉइंट पे आ जाते. होल प्लान કે ભાઈ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટોક અબાઉટ ધ કોરોના અત્યારથી ઇતિ સુધી વાત કરવાનો છું અને પછી આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન રહેશે. અને કોરોનાનું તો ચારે બાજુ એટલી બધી ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ છે કે બધું ઇન્ફોર્મેશન ઓવરલોડ થઈ ગયો છે કે ભાઈ ખરેખર સાચું શું ખોટું શું, અને બધા પોતપોતાની રીતે તિકડમ ચલાઈ જાય છે કે ભાઈ આનું આમ થાય ને આનું આમ થાય, બરાબર. એટલે ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ ફિલ્ટર ધ ઇન્ફોર્મેશન. અને જ્યારે પોતાના ઘરમાં જ ક્યારે કશું થાય ને ત્યારે બધી પગ નીચેથી ધરતી ખસી જાય છે કે ભાઈ બધી વાર્તા કરી તો બહુ ઇઝી છે, પણ જ્યારે તમારી સામે આવીને ઊભું રહે ત્યારે શું કરવું એ વસ્તુ જેને થઈ હશે એને ખબર હશે, જેને નહીં થઈ હોય એને રોજ રાત્રે આ જ મગજમાં આવતું છે કે સારું કાલે સવારે ઉઠીને મારા ઘરમાં કોઈને કોરોના થયો તો શું કરીશું. એટલે આ બધી વસ્તુ હું કવર કરવાનું, થોડું ઘણું મેડિકલ આવશે. એટલે આઈ વિલ ટ્રાય કે મેક્સિમમ સિમ્પલ ભાષામાં કહું જેથી કરીને તમને મેડિકલ વર્ડ્સથી એટલું બધું આમ ના થઈ જાય. તો કોરોનામાં આપણા બધાની પહેલી ઈચ્છા શું હોય કે ભગવાન કરે ને કે સમહાવ આ કોરોનામાંથી હું બાલ બચી જાઉં, બરાબર. બધાની પહેલી ઈચ્છા, હું ડૉક્ટર તરીકે મારી પણ એ જ હોય કે હું રોજ સવારે હોસ્પિટલ જાઉં એટલે મને મગજમાં તો એ જ હોય કે ભાઈ કેમ કરીને મને ના લાગે, બરાબર. એટલે એના માટે બધી પ્રિકોશન લેતો હોઉં. પછી બીજું વસ્તુ શું થાય કે ભાઈ દરેક લોકો એવું વિચારે કે ભાઈ ચલો ન કરે નારાયણને થઈ ગયો તો મને એના કોઈ સિમ્ટમ્સ ના આવવા જોઈએ કે ભાઈ એ સિમ્ટમેટિક કોરોના થવું જોઈએ કે ભાઈ ટેસ્ટ પોઝિટિવ આવે પણ મને કશું નથી. એવા ઘણા બધા ઓલમોસ્ટ 80% પ્લસ ની રીતનું જ હોય કે ભાઈ થાય પણ કશો સિમ્ટમ્સ ના આવે. પછી ત્રીજું સ્ટેજ આપણે શું આવે કે ભાઈ આપણે શું ધીમે ધીમે એક્સેપ્ટ કરતા જઈએ કે ભાઈ ત્રીજું સ્ટેજ એવું હોય કે ભાઈ ધારો કે કદાચ થાય ને સિમ્ટમ્સ આવે પણ તો સાધારણ તાવ આવી જાય કે થોડું ઘણું ઉધરસ થઈ જાય કે થોડું શરીર દુખે કે એવું બધું કંઈ થાય ને પછી 3-4 દિવસમાં મટી જાય એવી આપણી ઈચ્છા હોય. પછી એવું થાય કે ન કરે નારાયણ ને ભગવાન એવું કરે કે એનાથી વધારે થાય તો ભગવાન મને શ્વાસ લેવામાં તકલીફ ના આપતો, બરાબર. પછી એવું થાય કે ભાઈ કદાચ શ્વાસ લેવાની પણ તકલીફ થાય તો ભગવાન એવું ના કરતો કે જેથી કરીને મારું ઓક્સિજન સેચ્યુરેશન, હવે તો બધાને ઓક્સિજન સેચ્યુરેશનની ખબર જ હશે, રાઈટ, કે ભાઈ ઓક્સિજન મારું 92-93% ઘટે નહીં. કારણ કે આપણને ખબર છે કે 92-93% ઓછું થયું એટલે શું આવે? હોસ્પિટલ, બરાબર. એટલે શ્વાસ ચડે અને ઓક્સિજન ઓછું થાય એટલે નેક્સ્ટ સ્ટેપ આવે એટલે હોસ્પિટલ. એટલે કે ભગવાન મારે હોસ્પિટલ જવું ના પડે એવું કરજે. કારણ કે આજકાલ તો ખબર છે ભાઈ અમેરિકામાં એવું નથી થયું કે ભાઈ હોસ્પિટલમાં જગ્યા ના મળી હોય કે મારે કોઈને ભય બાપા કરવા પડે કે ભાઈ બેડ છે કે નહીં, કે પછી કોઈની લાગવગ લગાવી પડી પોલિટિશિયનની કે કોઈ ભાઈબંધની દોસ્તારની કે ભાઈ યાર રાકેશભાઈ તમારે કોઈ ભાઈબંધ હોય તો કોને કે ભાઈ અમારે હોસ્પિટલમાં બેડ જોઈએ. ખબર નહીં મુંબઈમાં કેવી દશા છે પણ અમદાવાદમાં તો બહુ હતું અને હજી છે. મારો પોતાનો એક ભાઈબંધ જે છે એ હોસ્પિટલમાં રેડિયોલોજી થેરાપી ડિપાર્ટમેન્ટના હેડ છે. એના એક સગાને થયું તો 6 હોસ્પિટલ ફર્યા એમ્બ્યુલન્સ લઈને, કોઈએ લીધા નહીં કે અમારે જગ્યા નથી. ફાઇનલી ફરીને છેલ્લે સિવિલમાં લઈ ગયો એના સગાને. એટલે આવું અમદાવાદમાં તો ઘણું બધું ચાલી રહ્યું છે. મુંબઈમાં ખબર નથી કેવું છે. પણ
તમને એવું થાય કે ભાઈ ભગવાન ન કરે નારાયણને મને જરૂર પડે તો એવું કરજે કે એ દિવસે હોસ્પિટલમાં જગ્યા હોય. અને પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું આવે કે ભગવાન એવું કરજે કે મારા ખિસ્સામાં ફરિયા હોય કે જેથી કરીને હું બિલ ભરી શકું. કારણ કે અત્યારે તો ઘણા લોકોને એવું છે કે ભાઈ હોસ્પિટલમાં કોરોનાથી જવું એના કરતા મૃત્યુ આગળ પડે એવું થઈ ગયું છે કે ભાઈ આરું રોજના ખબર નહીં કેટલાનું બિલ આવે. પણ અમદાવાદની જે મેં હોરર સ્ટોરી સાંભળી છે તો બહુ એક જોરદાર છે કે ભાઈ હોસ્પિટલ વાળા 8 લાખ રૂપિયા ડિપોઝિટ મુકાવે, 10 લાખ ડિપોઝિટ મુકાવે, એટલે પ્રાઇવેટ વાળા. ખબર નહીં સિવિલનું કેમનું છે મને ખબર નથી, પણ ઘણા બધા લોકો એમ કે ભાઈ મારે ગવર્મેન્ટમાં નથી ટ્રીટ થવું કે પણ કે કારણ કે આપણી જે ઇમ્પ્રેશન છે ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલની એના લીધે બધાને એવું થતું કે ભાઈ મારે ત્યાં જઈને ટ્રીટમેન્ટ નથી લેવી પણ મારે પ્રાઇવેટમાં જવું છે. હવે આમાં ના આમ જવાય કે ના આમ જવાય. પ્રાઇવેટમાં તમે રોજના 70-80, મારે ભાઈબંધના જ મમ્મીને દાખલ કર્યા હતા, 3 દિવસ રાખ્યા, ઓક્સિજન પણ નહીં, ખાલી રૂમમાં જ રાખ્યા હતા, 3 દિવસનું 1,82,000 બિલ આવ્યું. એટલે દરેકના મનમાં એ તો દુઃખ, એ તો ચિંતા રહેતી જ હોય કે ન કરે નારાયણ ને આવું થયું તો પૈસા ક્યાંથી લાવીશ. એટલે એ હોય ને પછી ચલો હોસ્પિટલમાં જતા રહ્યા તો આપણે એવું થાય કે ભગવાન એવું કરજે કે ભાઈ ચલો હોસ્પિટલમાં ગયા, પૈસાની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ, બેડ પણ મળી ગયું, પણ મારે વેન્ટિલેટર પર ના જવું પડે એવું કંઈક કરજે ભગવાન. પછી એવું થાય કે સારું ન કરે નારાયણ વેન્ટિલેટર પર જવું પડ્યું તો ભગવાન એવું કરજે કે ભાઈ 2-4 દિવસ જ જરૂર પડે ને પછી હું બહાર નીકળી જાઉં. પછી ઓલમોસ્ટ હવે ફાઇનલ સ્ટેજ શું હોય કે ભાઈ કદાચ 4 દિવસ હું બહાર ના નીકળું અને લાંબુ ચાલે તો એટલું બધું લાંબુ ના ચલાવીશ કે જેથી કરીને મને તકલીફ પડે, મને તરત જ ઉઠાઈ લે. જેમ કે ભાઈ એવું થાય કે ભાઈ મારો અંત આવી ગયો છે તો પછી મને લાંબો સમય રીબાઈશ નહીં. કારણ કે 2 વસ્તુ થાય કે ભાઈ હું રીબાઉં અને મારું ફેમિલી પૈસે ટકે પાયમાલ થઈ જાય. એટલે આપણી જે માનસિક પરિસ્થિતિ છે આમાંથી આપણે બધા ગુજરતા, કે તમે કે હું બધાને આ રીતે જ આપણે ગુજરતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ પણ આપણો ગોલ શું છે કે જે કટ ઓફ લાઈન જે કહેવાય શું છે કે હોસ્પિટલમાં કેમ કરીને ના જવું પડે. જવું પડે તો જવાનું. અને હું જે અત્યારે કહું છું ઓફિશિયલ મેડિકલ એડવાઇસ ના ગણતા, એને બેઝિકલી એક જાતનું મેડિકલ ગાઈડન્સ ગણવાનું કે આપણે કે એક છે કે જે હોસ્પિટલમાં જવાની જરૂર ના પડે અને બીજું છે કે હોસ્પિટલમાં જવાની જરૂર. કારણ કે એકવાર તમે હોસ્પિટલમાં જાઓ પછી તમારા હાથમાં કશું નથી. તમને ખબર છે કે ભાઈ તમે દર્દીને મળી પણ નથી શકવાના કે દર્દી તમને કશું કહી નહીં શકે. એટલે અડધા દર્દી તો બિચારા એમાં જ માનસિક રીતે ખલાસ થઈ જતા હોય છે કે પોતાના સગાવાલાને બીમારીના સમયે જોઈ શકતા નથી. અને જેમ જેમ એમનું મૃત્યુ નજીક આવે એક તો એમને ખબર પડે કે હું તો એકલો જ છું. આપણે જીવનમાં એકલા આવ્યા છે ને એકલા જવાના જ છીએ, પણ જ્યારે એકલતાનો અનુભવ ખરેખર થાય ને ત્યારે બધું જ દિવસે તારા દેખાઈ જતા હોય છે. અને આ બધું જોયેલું છે મેં, એટલે મને ખબર છે કે ભાઈ પેશન્ટ શું માનસિક પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થતો છે. માણસને મૃત્યુનો ડર નથી હોતો એઝ સચ, પણ કે મૃત્યુ વખતે એના પ્રિયજનોને મળી નહીં શકવાનું અને મૃત્યુ પછી શું થશે અને મૃત્યુ દરમિયાનમાં જે રીબાવણી થવાની, જે આ 3 વસ્તુનો મેઇન ભય હોય છે. એટલે એ બધાથી કેવી રીતે ડીલ કરું એના પર વધારે વાત કરીએ. કારણ કે માસ્ક પહેરવાના અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ ને હાથ ધોવાના એ બધું તમને બધાને ખબર છે, બધું લાખો વાર તમે સાંભળી ચૂક્યા છે. એટલે એ બધી વસ્તુ કથા હું કરવાનો નથી અત્યારે. અત્યારે આપણું મેઇન વસ્તુ જે છે એ ફિલોસોફિકલી આને કેવી રીતે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું છે. કારણ કે જે બીક જે છે ને એ બીક જે આપણે હિન્દીનો ડાયલોગ હતો કે જો ડર ગયા સો મર ગયા, એ બહુ સાચી વસ્તુ છે કે આમાં 80% લોકોને કશું થતું નથી, પણ જે મરી જાય એમાંથી અડધા લોકોને તો મૃત્યુ જે જીજી વિષા જતી રહે છે ને, કારણ કે એટલો બધો ભય નાખી દેવામાં આવ્યો છે કે એ જીજી વિષા જતી રહે ને એકવાર તમારી જીજી વિષા જતી રહે ને પછી ભગવાન પણ તમને ના બચાવી શકે એવું છે આમાં. કે કારણ કે દવા હજી સુધી કોઈ પણ સાબિત થઈ નથી કે ભાઈ આ દવા કામ કરે છે. કે ધારો કે તમને મેલેરિયા થયો તો આપણને ખબર છે કે ભાઈ તમે ક્લોરોક્વિન લીધી તો મેલેરિયા મટી જવાનો છે, કે તમને ગળામાં સોર થ્રોટ થયું તો ખબર છે કે ભાઈ એન્ટીબાયોટિક લીધી એટલે મટી જવાનું છે. પણ આમાં એવું નથી. આમાં તો બેઝિકલી શું છે કે બધા તીકડમ બધા ચલાવે છે પણ કશું હજી સાબિત થયું નથી. એટલે બધું કામ કરે છે એવું માની લેવાનું અથવા કશું કામ નથી કરતું. પણ જે હિલિંગ પાર્ટ જે છે એ બેઝિકલી ભગવાન જ કરે છે. ભગવાનની ડેફિનેશન તમારી જુદી હોય મારી જુદી હોય, પણ અલ્ટિમેટલી આપણે જે યુનિવર્સલ ફોર્સને ગણીએ છીએ કે જે એકવાર હોસ્પિટલમાં ગયા પછી માણસ સાજો થઈને ઘરે આવશે કે નહીં આવે એમાં અમે ડોક્ટરો ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ બહુ કંઈ જાજુ કરતા નથી. અમે તો ખાલી થોડો સમય ટેકો જ આપીએ છીએ અને અમને જે લાગે કે આ દવા કદાચ કામ કરવાની છે એ બધી દવાઓ આપીએ છીએ અને બીજી બધી વસ્તુઓનું મેનેજમેન્ટ કરીએ. બાકી હિલિંગ જે થાય છે એ તો ઉપરવાળો જ કરે છે. એટલે આપણું કામ શું છે કે ઉપરવાળો આવે એ પહેલા એઝ અ માણસ હું શું કરી શકું એ બધી વસ્તુ અત્યારે હું વાત કરવાનો છું કે ભાઈ માણસ તરીકે હું મારા હાથમાં શું શું છે. બરોબર. હવે
જ્યારે કંઈ પણ અણધારી વસ્તુ આપણા જીવનમાં થાય ને એટલે આપણે જીવનના અમુક તબક્કામાંથી આપણે પસાર થતા હોય છે. પહેલો તબક્કો શું આવે કે આપણે એટલે એના પહેલા તમે એક બીજી વાત કરું કે જ્યારે કોરોના ચાલુ થયો, વુહાનમાં ચાલુ થયો, એટલે એ વખતે આપણને શું હતું કે આ તો બધું ચાઇનામાં જ થાય. આપણે ટિકટોક પર બધા ચાઇનાના વિડીયો જોતા હતા, બરોબર, કે ભાઈ એવો પેલા બધા માણસોને લઈ જાય છે, આમ કરે ને તેમ કરે ને બધું વોશિંગ કરે છે. એટલે એ વખતે આપણને એવું નતું કે એ રોગ છે મારી બાજુમાં આવીને ઉભો રહેશે. એટલે શરૂઆતમાં આપણને એવું કે ભાઈ એ તો વુહાનમાં છે ને, તો વુહાનમાં છે. પછી એવું થયું કે ભાઈ એ વુહાનમાંથી ગયો ઇટલીમાં ગયો અને સ્પેનમાં ગયો અને યુકેમાં ગયો, એટલે કે આ બાજુ જતો રહ્યો. પછી ત્યાંથી આવ્યો અમેરિકામાં. એટલે અમેરિકાનું તો હજી આજની તારીખમાં અમેરિકાનો તમે નંબર જો તો ઇન્ડિયા કરતા એકચ્યુઅલી ખરાબ છે નંબર, પણ ઓવરઓલ ઇટ ઇઝ ગેટિંગ બેટર. એટલે અમેરિકામાં આવ્યો એટલે બધાને અમેરિકાની સ્વાભાવિક ચિંતા થાય, કારણ કે દરેક જણ અમેરિકામાં કોક હોય. એટલે રોજ અમને ફોન આવે કે ભાઈ તારે કેવું છે, કારણ કે બધાને ખબર કે હું હોસ્પિટલ જતો, એટલે દરેકને ચિંતા તો થાય જ. એટલે અમેરિકામાં નંબર વધતા ગયા. માર્ચ, એપ્રિલ, મે માં તો બધું આસમાને બધું પહોંચી ગયું, બરોબર. એટલે ત્યાં સુધી એવું નતું કે ભાઈ ઇન્ડિયામાં છે ગયા હશે, પણ ફેબ્રુઆરીના એન્ડથી આ નમસ્તે ટ્રમ્પ પત્યું પછી આઈ થિંક બધું ચાલુ થયું. માર્ચ મહિનાથી થોડું ઘણું ચાલુ થયું. પણ એ વખતે ધારો કે તમે મુંબઈ રહેતા હોય તો એવું થાય કે દિલ્હીમાં પહેલો કેસ આવ્યો, ફોર એક્ઝામ્પલ, તમને કહ્યું હજી તો દિલ્હીમાં છે, આપણે નથી આવી. પછી દિલ્હીથી સડનલી તમને થયું કે મુંબઈમાં પહેલો કેસ આવ્યો. પછી મુંબઈથી તમે ધારો કે ઘાટકોપરમાં રહેતા હોય, તમને કે ઘાટકોપર વેસ્ટમાં આવી ગયું છે હવે. પછી ધીમે ધીમે ખબર પડે કે સારું આ તો ઘાટકોપર ઈસ્ટમાં આવ્યું. પછી ધીમે ધીમે ખબર પડે ઘાટકોપર ઈસ્ટમાં નહીં, આ તો મારા એરિયામાં જ આવ્યું. પછી ખબર પડે કે આ તો મારા એરિયામાં નહીં, મારા બિલ્ડિંગમાં જ આવ્યું છે. પછી ખબર પડે કે મારા બિલ્ડિંગમાં નહીં, આ તો મારે નીચેના વાળાને જ આવ્યું છે, તો મારું ઉપર વાળાને 15મા માળ વાળાને જ આવ્યું છે. અને પછી ન કરે નારાયણ એવું થાય કે એક દિવસ ખબર પડે કે ભાઈ મારા ઘરના કોઈ ફેમિલી મેમ્બરને જ સિમ્ટમ્સ ચાલુ થયા છે. અને પછી એવું થાય કે આ તો મારા પપ્પાને કે મારા ભાઈને કે મારી બહેનને જ હોસ્પિટલ દાખલ કરવા પડે. તારે ખબર પડે કે આ વસ્તુની રિયાલિટી શું છે, કારણ કે ત્યાં સુધી આપણને બહુ દૂર લાગતું હોય. એટલે આ રીતે આપણે ફેઝમાંથી પસાર થઈ કે જેવું આવું કશું થાય ને એટલે પહેલા તો આપણે ડિનાયલ ફેઝમાં કે આવું તો થતું હશે અમને, કે આવું તો કશું ના થાય, બરોબર. એટલે ડિનાયલ આપણે માનીએ જ નહીં કે આવું થઈ શકે. પછી બીજો ફેઝ આવે કે એંગર. ધારો કે ખબર પડી કે મારા પપ્પાને થયું છે કે મારા બાને થયું છે, એટલે આપણે એકદમ ગુસ્સે થઈ જાય કે સારું મેં તો જિંદગીમાં કંઈ ખોટા કામ કર્યા નથી, તો મને જ કેમ આવું થયું, બરોબર. એટલે ભગવાન જોડે આપણે ફાઇટ કરીએ. એ 15-20 દાડા કે મહિનો 2 મહિના આપણે ભગવાનમાં માનવાનું ભૂલી જઈએ છીએ, એ મંદિર જવાનું બંધ કરી દઈએ કે ભગવાન જેવું કશું છે જ નહીં. પછી ખબર પડે કે ભગવાન જોડે ઝઘડવાથી કશું થવાનું નથી, જે છે એ છે. એટલે પછી આપણે આવી જઈએ ડિપ્રેશનમાં કે સારું હવે તો શું કરીશું કે ખબર નથી પડતી. એને ન કરે નારાયણ ને પૈસાની વ્યવસ્થા ના હોય તો પછી ડિપ્રેશન એ આવે કે ન કરે નારાયણ ને મારે બાને કે પપ્પાને કે કોઈને હોસ્પિટલ લઈ જવું પડશે, તો પૈસા ક્યાંથી લાવીશ, એટલે ડિપ્રેશનમાં આવી જાય. પછી હવે બાર્ગેનિંગનો ફેઝ આવે કે ચલો કઈ વાંધો નહીં, હવે જે છે એક્સેપ્ટ કરી લીધું છે, થોડું ઘણું તો બાર્ગેન કરે કે ભાઈ ચલો હું હવે રોજ હાથ ધોઈશ, હું રોજ આવું કરીશ, હું આમ કરીશ, હું બધું હેલ્ધી ખાઈશ, એક્સરસાઇઝ કરીશ, પણ ભગવાન કંઈક એવું કર કે સારું થઈ જાય. અને છેલ્લો ફેઝ એવો કે એક્સેપ્ટ કરી લે આપણે ભાઈ કે હકીકત જે છે આ છે કે ભાઈ હવે ઘાટકોપર ઈસ્ટમાં આવી ગયો છે રોગ, અને કેવી રીતે હું આમાંથી બચું. તો હવે એ વસ્તુ પર હું વાત કરું, કારણ કે આમાં તમે સિમ્પલી જુઓ તો બે વસ્તુ છે કે એક બાજુ છે કોરોના અને એક બાજુ છે આપણું શરીર. આ બે વચ્ચેનો જંગ છે. હવે જંગમાં જે બળવાન એ જીતવાનું, બરોબર. એટલે ટિપિકલી જે રોગ બધા જે થાય અત્યાર સુધી જે પેન્ડેમિક થયા છે, કશું પરમેનન્ટ હોતું નથી. જીવનમાં કશું પરમેનન્ટ નથી. આપણું શરીર પરમેનન્ટ નથી, આપણે પરમેનન્ટ નથી, અને કોરોના પરમેનન્ટ નથી રહેવાનું. એટલે વહેલો મોડો એ જવાનો તો ખરો જ. એટલે જવાનો એટલે સંપૂર્ણ જતો ના રહે. ફોર એક્ઝામ્પલ મેલેરિયા જતો નથી રહ્યો, પણ આપણે બધા આપણું બાળપણ યાદ કરીએ તો કેટલી વાર મચ્છર કાઢતા હતા અને કેટલી વાર મેલેરિયા થતો હતો, બરોબર. પણ હવે મેલેરિયાનું પ્રમાણ ઓછું થઈ ગયું છે. એના બદલે આવ્યો ડેન્ગ્યુ, એના બદલે આવ્યો ચિકનગુનિયા, અને એના બદલે આવશે કોરોના. એટલે કોરોના શું થશે કે જીવનના ભાગ સ્વરૂપે થઈ જશે. હવે તમે એમ જુઓ તો આપણા શરીરમાં તમે નાકથી માંડી ને બધે ચામડી બધે એટલા બધા બેક્ટેરિયા અને વાયરસ ઓલરેડી હોય જ છે. નથી એવું નથી, તમારા આંતરડામાં એટલા બધા બેક્ટેરિયા હોય છે, બિલિયન્સ ઓફ બેક્ટેરિયા હોય છે. હવે દરેક બેક્ટેરિયા વાયરસ એ આપણને નુકસાન કરે એવું જરૂરી નથી, એ બધું આપણને ફાયદો પણ કરતા હોય છે. કાં આપણી જોડે આપણે જે ભાડુઆત હોય હેરાન કર્યા આગળ જોડે રહે આપણી જોડે, અને એ સુખી ને આપણે સુખી, એ રીતે રહે. અથવા એ આપણને એકચ્યુઅલી હેલ્પ કરે. ઘણા બધા બેક્ટેરિયા છે કે જે આપણને હેલ્પ કરે. એટલે કોરોના શું કરશે હજી ખબર નથી, પણ ઇવેન્ચ્યુઅલી 3 વસ્તુ થાય. કઈ વસ્તુ કે એક તો તમે કોરોનાની એવી દવા કે વેક્સિન શોધી કાઢો જેથી કરીને કોરોનાનું બધું સુરસુરી થઈ જાય.
અથવા બીજું શું થાય કે કોરોના પોતે જ સમજી જાય કે ભાઈ હવે આ લોકો જોડે આમને કઈ બહુ બતાવવા જેવા નથી, એટલે આપણે મારે જો સર્વાઈવ થવું તો મારે ચૂપચાપ જીવવું પડશે, બરોબર, તેરી બીચું પર મેરી બીચું, એ રીતે જીવવું પડશે, બરોબર. એટલે એ વસ્તુ કાં વેક્સિન થાય, કાં દવા શોધાય, કાં કોરોના તમને તમારી જોડે ચૂપચાપ રહે, અથવા એવું પણ થઈ શકે કોરોનાનું એવું મ્યુટેશન થાય કે જેથી કરીને એકચ્યુઅલી કોરોના તમને ભવિષ્યમાં તમારે જે આપણે હ્યુમન રેસનું જે ઇવોલ્યુશન છે, જે પ્રગતિ છે, એમાં મદદ પણ કરે. એટલે આ બધી એક જાતની થિયરી કહેવાય. પણ જે સમય છે અત્યારનો છે ભાઈ, આજથી 4 મહિના પછી જે થયું છે, પણ આજનું શું આપણને મેઇન છે કે ભાઈ કાલ સવારે મને કોરોના થઈ ગયો તો શું કરવું. એટલે એ બધા વિશે આપણે વાત કરવાની છે કે ભાઈ કાલ સવારે થયું તો શું કરવું. હવે જસ્ટ થોડા ઘણા નંબર્સ તમને કહું કે સાપેક્ષ તમે રિલેટિવલી તમે જુઓ તો ઇન્ડિયાની પરિસ્થિતિ આમ ખરાબ દેખાય છે, પણ રિલેટિવલી અમેરિકા કરતા એકચ્યુઅલી તમારી પરિસ્થિતિ ઘણી સારી. અમેરિકાની તમે પોપ્યુલેશન ગણો તો 34 કરોડની પોપ્યુલેશન છે, બરોબર. એમાં ગઈકાલે મેં ટોટલ ડેથ જોયા હતા તો 34 કરોડમાંથી 1,27,000 માણસો મર્યા છે, બરોબર. હવે એની સામે ઇન્ડિયાની વસ્તી આપણી 130 કરોડ ગણો કે 120 કરોડ ગણો, પણ અમેરિકા કરતા તો એટલીસ્ટ 4 ગણી વસ્તી તો ખરી આપણી. તો એમાંથી માત્ર હજી 15 કે 16,000 માણસો મર્યા છે. એટલે તમે રિલેટિવલી જુઓ કે વસ્તીની સાપેક્ષે માણસો કેટલા મર્યા છે તો તમને ધરપત થઈ જાય છે કે ભાઈ રોગ છે, પણ એટલો બધો ખરાબ નથી કે આપણી ઊંઘ હરામ થઈ જવી જોઈએ કે ભાઈ આપણે 24 કલાક એકદમ પહેરા. કારણ કે મારા એક પોતાનો મારો મિત્ર છે, પોતે ડોક્ટર છે, એટલો સાયકિક થઈ ગયો કે એને એકચ્યુઅલી સાયકેટ્રિસ્ટની ટ્રીટમેન્ટ લેવી પડી. મારો એક બીજો ફેમિલીમાં છે, એ પણ એટલો ઓલમોસ્ટ ગાંડા જેવો થઈ ગયો. આમ પેલું નથી કે પથ્થર એટલા પૂજે દેવ જેવું થઈ ગયું. આમ કે ભાઈ જે પણ મળ્યું કે કોકે કહ્યું કે આ ફાંકી ખાઓ ને આ ટેબ્લેટ લો ને આ બધું ઘરમાં ઢગલા કરવા માંડ્યું કે ન કરે નારાયણ મારે બધાની જરૂર પડે. તો એટલે એટલા સાયકિક થવાની જરૂર નથી. તમે અમેરિકાના નંબર જુઓ કે 1.25 લાખની સામે ઇન્ડિયામાંથી 15-20 હજાર જ છે. એટલે હજી નેક્સ્ટ જુલાઈ ઓગસ્ટમાં વધશે. એવું નથી કહેતો કે ભાઈ પતી ગઈ છે વાર્તા. જે રીતે અમેરિકામાં એપ્રિલ મે જૂનમાં અમારે જે થયું એ હવે અહીંયા ઇન્ડિયામાં જૂન જુલાઈ ઓગસ્ટમાં થવાનું. પણ ઓગસ્ટ પછી બધું મારા પ્રમાણે. હવે આમાં હું જે પણ કહું છું એ બધું મારા જજમેન્ટથી કહું છું. આમાં કશું પથ્થર की લકીર જેવું નથી કે કાસ્ટ ઇન કોન્ક્રીટ નથી કે ભાઈ મેં કહ્યું એ જ થવાનું છે. आई मे बी रॉन्ग, आई विल स्पीक लाइक दैट. तो अगर आप अमेरिका के नंबर देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि अमेरिका में प्रॉब्लम एक्चुअली ज्यादा है. लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब नहीं हुआ, जो कुछ नॉर्मल चलता रहा, क्योंकि जो कोरोना का जो सॉल्यूशन क्या है, तो परमानेंट सॉल्यूशन है ना, वो इम्यूनिटी से ही आ सकता है या वैक्सीन से. तो कैसे इम्यूनिटी आती है, तो पहला जो है वो है आपको अगर कोरोना हो गया तो 99% चांस ऐसा है कि आप इम्यून हो गए, तो आप बेसिकली बाल बाल बच गए क्योंकि आपको हो गया, सिम्टम्स नहीं आए और आप बच गए. तो वो पहला है. दूसरा है कि आप को वैक्सीन लग जाए. तो वैक्सीन लगेगी तो अभी तो वैक्सीन का तो कुछ ठिकाना नहीं है, लेकिन जो ट्रंप ने जो लॉन्च किया है जो वार्प प्रोजेक्ट WARP, उसमें ऐसी पॉसिबिलिटी है कि मेरा मानना है कि अक्टूबर से पहले वैक्सीन आ जाएगी. थोड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट देता हूँ क्योंकि नवंबर में इलेक्शन है, तो मेरा ऐसा मानना है कि अक्टूबर में वैक्सीन शायद आ जाएगी. तो दूसरा वाला हो गया वैक्सीन का. तीसरा वाला है हर्ड इम्यूनिटी. हर्ड इम्यूनिटी मीन्स कि अगर 90% से ज्यादा लोगों को हो जाता है कोरोना का इन्फेक्शन, तो कोरोना की जो ताकत है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है. जैसे कि पोलियो हमने नाबूद कर दिया है, स्मॉल पॉक्स जैसे जो शीतला बोलते हैं उसको नाबूद कर दिया. तो कैसे पोलियो नाबूद इसलिए हुआ है, ऐसा नहीं है कि सब लोगों ने वैक्सीन ले लिया है. 100% वैक्सीनेशन नहीं, क्योंकि इवन अमेरिका में भी ऐसे लोग हैं वो वैक्सीन में बिलीव ही नहीं करते, फिर भी पोलियो नहीं होता है क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी, HERD, हर्ड इम्यूनिटी हो गई. उसकी वजह से पोलियो का वायरस का जो स्ट्रेंथ थी वो कम हो गई. तो ऐसे ही उसका परमानेंट सॉल्यूशन आ सकता है कि हर्ड इम्यूनिटी से, वैक्सीन से, या अगर आपको खुद को कोरोना हो जाता है. जो मेडिसिन है वो कोरोना को ट्रीट करने के लिए, तो वो एक बार किया एक बार ट्रीट हो गया, अब दोबारा होता है तो दोबारा ट्रीट करने का होता है. तो आपका ओवरऑल गोल क्या होना चाहिए कि जो मैंने बताया कि जैसे ये कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस ऐसा होता है, उसके पे स्पाइक होता है, ये कोरोना वायरस है, तो ये इसके और मेरे बीच में जंग है ऐसा. तो इसमें से कोरोना का तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो जो करना है वो डॉक्टर करेंगे, साइंटिस्ट करेंगे, मैं तो कुछ नहीं कर सकता. मैं एक्चुअली रिसर्च स्टडी का खुद पार्ट हूँ, तो मैं उसमें शामिल तो हूँ, लेकिन एज ए लेमैन आप कुछ नहीं कर सकते. तो ये जो दो पहलू है, एक पहलू मैं हूँ, एक पहलू ये है, तो ये तो तुम्हारा
आउट ऑफ द कोर्ट हो गया कि इसको कुछ नहीं कर सकते आप। तो रही बात मेरी रही, बराबर है, तो मेरी जो बात है वो मैं कैसे कर सकता हूँ, तो वो जानना है कि भाई इम्यूनिटी कैसे बढ़ानी है। तो अगर इम्यूनिटी बढ़ानी है तो पहले इम्यूनिटी के बारे में कुछ जानना तो पड़ेगा ना, कि भाई इम्यूनिटी इम्यूनिटी शब्द बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इम्यूनिटी क्या चीज है, तो उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊं। जो मेरे साथ फेसबुक में जुड़े हुए हैं उनको शायद उन्होंने शायद मेरा वीडियो देखा होगा, मैंने बहुत सारे कोरोना पे वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं लेटर ऑन। तो उसमें मैंने पूरा एक वीडियो बनाया था इम्यूनिटी वाला, तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इम्यूनिटी से पहले आपको ये जानना जरूर है कि ये जो कोरोना है वो आदमी को खत्म कैसे करता है, बराबर है। सर्दी में आदमी खत्म नहीं होता है, कोरोना में जो 6% लोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। क्यों होते हैं, तो उसका मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप ये देख लेते कि ये कोरोना वायरस है तो वो कैसे आता है, तो कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई मेरे शरीर में कैसे आता है। तो जो स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन क्या होता है कि भाई आंख पे हाथ ज्यादा नहीं लगाने का, नाक पे नहीं लगाने का, मुंह पे नहीं लगाने का, क्योंकि वहां से स्प्रेड होने की संभावना है, बराबर है। तो चलो मान लिया कि आप कहीं पे बाहर हो, आपको वायरस लगा, खुदा ना करे कि आपको कुछ ना हो, लेकिन जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि ऐसा हुआ, तो ये वायरस है मान लो, तो ये वायरस पे ऐसे स्पाइक होते हैं, इसीलिए उसको कोरोना बोलते हैं। जैसे क्राउन होता है ना, क्राउन, कोरोना मीन्स क्राउन, तो उसे उसका नाम कोरोना पड़ गया है। तो कोरोना जब पहली बार आया था सार्स तो उसको कोरोना का नंबर 1 दिया था। फिर मिडल ईस्ट का आया तो उसको नंबर नहीं दिया, तो उसको MERS बोला, और अब जो तीसरा आया उसको सार्स को 2 नंबर दिया है। तो उसपे ये स्पाइक होता है, एस स्पाइक बोलते हैं उसको। तो अगर ये आपके सांस में जाते हैं तो पहले तो क्या होता है कि नॉर्मल लोगों को यहाँ पे हमारे ऐसे हेयर्स होते हैं, तो हेयर की वजह से वो ट्रैप हो जाता है, वो फिर आगे नहीं जाता है, क्योंकि उसके बाद आपको स्नीज करना पड़ता है, छींक आ जाती है, तो आप निकाल देते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी को जुकाम हुआ उसके बाद में जाता आपको पहली छींक आती है, तो अगर आप उसको पहचान लेते और उसके दूर हो जाते और थोड़ी बहुत छींक खा लेते तो शायद वहीं से वायरस बाहर निकल सकता है, बराबर। अगर न ऐसा हुआ कि नहीं हुआ तो फिर नीचे जाता है। तो फिर नीचे क्या होता है कि यहाँ पे हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, तो टॉन्सिल्स में कई बार वो ट्रैप हो जाता है। तो जब तक हो सके तो टॉन्सिल मत निकालना, कि वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो लिम्फोइड टिश्यू बोलते हैं। और फिर नीचे जाते हैं। अगर लंग में गए तो लंग में क्या होता है कि लंग में जो हमारा फेफड़े होते हैं वो ऐसे होते हैं, ये स्पंज है, स्पंज। तो इसमें आप देख सकते हैं, तो ये पूरा जो हमारा जो बलून होता है ना, उसमें यहाँ से गैस एक्सचेंज होता है, तो ये लंग पूरा ऐसा होता है, स्पॉन्ज ही होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कोरोना का वायरस है ना, वो यहाँ पे स्टिक हो जाता है। तो इसका मैं एक्सपांड करके दिखा रहा हूँ कि जो लंग में हमारे सेल्स होते हैं, न्यूमोसाइट्स बोलते हैं, न्यूमो मीन्स एयर और साइट मीन्स सेल। तो एयर सेल होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो जो लंग, ये जो कोरोना वायरस होते हैं, जो न्यूमोसाइट्स, जो सर्फेक्टेंट, SURFACTANT, सर्फेक्टेंट, क्योंकि जो हम ऐसे सांस लेते हैं तो फेफड़े ऐसे जाते, बराबर है, तो फेफड़े ऐसे थोड़े एक्सपैंड ही रहते हैं, ऐसे कोलैप्स नहीं हो जाते, बराबर है। जैसे हम सांस बाहर निकालते हैं तो उस टाइम पे फेफड़े कोलैप्स हुए, लेकिन कंटिन्यूसली ऐसे कोलैप्स नहीं रहते। तो वो जो ऐसे एक्सपैंड रखते हैं तो कैसे रह सकते हैं, तो वहां पे एक केमिकल होता है अंदर लंग के अंदर, उसको बोलते हैं सर्फेक्टेंट, साबुन जैसा केमिकल होता है, तो वो उसको ऐसे बनाए रखता है ताकि आपका लंग एक्सपैंडेड रहे। तो ये जो कोरोना वायरस वाला क्या होता है कि वो अंदर जाता है और वो जो साबुन जैसा सब्सटेंस जो सीक्रेट करता है ना, उसको डैमेज कर देता है। डैमेज करने के बाद तो वो क्या होता है, सर्फेक्टेंट सीक्रेट नहीं होता है, तो जो लंग है वो पूरे तुम्हारे नॉर्मली ऐसे होते हैं कि ऐसे रहते हैं, लेकिन जब कोरोना लग जाता है तो ये कोलैप्स हो जाता है, ऐसे लंग पूरा अंदर कोलैप्स होता है। फिर क्या होता है कि लंग के अंदर जो निमोसाइट्स होते हैं, तो जैसे ही ये कोरोना वायरस आता है ना, तो कोरोना अपना शरीर का डिफेंस मैकेनिज्म, जो इम्यूनिटी बोलता है, इतना पावरफुल होता है। 2 प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक बोलते हैं इन्नेट, INNATE, इन्नेट, कि इन्नेट इम्यूनिटी मीन्स क्या, कि जैसे हमारे पुलिस होती है, फर्स्ट रिस्पॉन्डर बोलते हैं कि भाई मुंबई में कुछ भी हुआ तो पहले पुलिस आ जाती है, बराबर। पुलिस का क्या काम, क्या कि जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी क्राइम हो रहा है तो क्राइम को खत्म करने का, अगर किसी पर गोली चलाएं वो गोली चला सकते हैं। तो जैसे ही कोरोना का अटैक होता है तो हमारी जो इन्नेट इम्यूनिटी है ना, वो आ जाती है कि चलो उसको निकालना है। तो इन्नेट इम्यूनिटी वो जाके कोरोना का वायरस को फाइट करती है।
तो उसको तो जो भी होगा, कोरोना होगा तो कोरोना का भी फाइट करेगी, अगर आप सिगरेट पीते सिगरेट का जो धुआं होगा उसको भी फाइट करेगी, अगर कोई बैक्टीरिया है उसको भी फाइट करेगी, अगर कुछ खाने में अंदर चला गया तो उसको भी फाइट करेगी। तो उसको मालूम नहीं कि वो किससे फाइट कर रहा है, उसके लिए तो सब दुश्मनी है। तो उसको बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। तो हमारा गोल क्या होना चाहिए कि वो इन्नेट इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाना, ताकि कोरोना नहीं, कोरोना का बाप भी आ जाए ना तो भी कोई बाधा नहीं आएगा। तो उसको ऐसे स्ट्रांग बनाने का इन्नेट इम्यूनिटी को। तो इन्नेट इम्यूनिटी में न्यूट्रोफिल होते हैं, मैक्रोफेजिस होते हैं, वो जो सेल्स होते हैं वो उसको फाइट करते हैं। फिर फाइट करने के बाद क्या होता है कि वो जो मुंबई पुलिस है उसका फिर लिमिट आ जाता है। अगर बहुत सारे राइड हो गए तो फिर एक लिमिट के बाद वो कुछ नहीं करते। वो क्या करते हैं कि फिर हाई कमांड को फिर मैसेज देते हैं कि भाई हमको कोई और मदद चाहिए। तो फिर मदद आती है, मैक्रोफेज आ जाता है, तो फिर वो आते हैं। वो क्या करते हैं, वो दुश्मन का तो फाइट करते हैं वहां पे, लेकिन फिर हाई कमांड को मैसेज भी देते हैं कि भाई ये इस कंट्री से यहाँ पे घुसा हुआ है, तो उसके लिए स्पेसिफिक इम्यूनिटी बनाया था। दूसरी इम्यूनिटी क्या होती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो पहली हो गई इन्नेट, जिसको जिसका मतलब क्या कि जो भी आया उसको मार दो। स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्या हो गई कि कोरोना के लिए स्पेसिफिक हो जाएगी, क्योंकि अभी मालूम है कि ये कोरोना है, तो कोरोना वाला स्पेसिफिक इम्यूनिटी आएगा तो फिर कोरोना को ही खत्म करेगा। तो लॉन्ग टर्म में हमारा गोल क्या है, जो वैक्सीन लेते हैं ना, वैक्सीन का क्या मतलब है कि आप कोरोना वाला जो एंटीजन देते हैं, तो जो आपका जो शरीर में बी सेल्स होते हैं, बी फॉर बॉम्बे, तो बी सेल्स होते हैं ना, उससे वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी आपकी डेवलप होती है। तो इमीडिएट आपका गोल क्या है कि आपकी इन्नेट इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाना है, ताकि मैंने बोला ना कि कोरोना नहीं, कोरोना का बाप भी आ जाएगा ना तो कुछ नहीं होगा, बराबर है। और लॉन्ग टर्म में कोरोना से इम्यूनिटी करनी है, तो कोरोना अगर फिर से आ गया 1 साल के बाद और 2 साल के बाद तो आपको कुछ नहीं होगा। तो ये थोड़ा बेसिक मेडिकल साइंस हो गया, और ज्यादा बताऊंगा तो आपको कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताने वाला हूँ। तो अभी इम्यूनिटी डेवलप करने से पहले आपको ये जानना चाहिए, मोस्ट ऑफ पीपल को तो मालूम ही है कि सिम्टम्स क्या होते हैं, लेकिन मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन पूरा आपको बताता हूँ कि भाई जब कोरोना होता है तो उसमें क्या क्या होता है। एक तो होता है कि जिसको इन्फेक्शन लगा ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ कि मैं कोरोना के मरीज के बीच में रहता था। लास्ट 4 वीक से मैंने एक भी पेशेंट नहीं देखा कोरोना का, तो दैट इज अ गुड साइन। तो जब पहले देखता था तो उस टाइम पे मैं बेसिकली एसिम्टोमेटिक था और मुझे इन्फेक्शन, क्योंकि मैंने टेस्ट करा तो मेरा नेगेटिव था, दैट मीन्स के नेगेटिव टेस्ट फॉर द कोरोना। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू जो भी लोग यहाँ पे है वो आप सब नेगेटिव है कोरोना के लिए। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग कि कोरोना नेगेटिव। और कोरोना नेगेटिव में 2 प्रकार के लोग हो सकते हैं। एक लो रिस्क जिसको कॉन्स्टेंटली एक्सपोजर नहीं होता है, कि जैसे मैं हाई रिस्क हूँ कि पेशेंट का एक्सपोजर कॉन्स्टेंटली होता है, तो ये मैं हाई रिस्क में आ जाता हूँ, एसिम्टोमेटिक एंड नॉन इन्फेक्टेड। अब दूसरा आता है कि जिसको पॉजिटिव टेस्ट आ गया। तो पॉजिटिव टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि पॉजिटिव टेस्ट में आप एसिम्टोमेटिक हो सकते हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ है, यार टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन मुझे तो कुछ नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे 80% ऐसे ही रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। फिर मे बी 5-10% ऐसे रहेंगे कि जिसको थोड़े बहुत सिम्टम्स रहेंगे कि तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो सिम्टम्स तो अब सिंपल है, वायरस अगर यहाँ से जाता है नाक से तो क्या होगा, पहला तो थोड़ा सर्दी जुकाम जैसा लगेगा, फिर अगर नीचे गले में गएगा तो गले में खिचखिच रहेगी, बराबर है। फिर थोड़ा नीचे जाएगा अगर तो लंग्स में जाएगा, तो फिर लंग में क्या होता है, मैंने बताया कि लंग्स में यहाँ पे कोलेप्स हो जाएंगे थोड़े बहुत, या फिर यहाँ पे कचरा जमा हो जाएगा, क्योंकि जब वो अपना जो बी सेल्स और मैक्रोफेजिस और न्यूट्रोफिल से जब वायरस से फाइट करते हैं ना, तो फिर फाइट करने के बाद क्या होता है, जब लाशें गिर जाएगी ना तो लाश का जो कचरा रहेगा वो आएगा। फिर अपने जो बॉडी से सब वो हम बोलते हैं कि साइटोकाइंस रिलीज होते हैं। तो अगर ये आपका लंग्स है और ये आपकी जो ब्लड वेसल्स है, तो यहाँ से ब्लड वेसल्स में से जो ये पानी है वो ब्लड मान लो, तो उसमें से सेल्स आते हैं, तो ये सब पूरा कचरा यहाँ पे जमा होता है। तो अगर थोड़ा कचरा जमा होता है ना तो आपको सिर्फ खांसी आती है, और जो कचरे में से थोड़ा केमिकल निकलता है ना वो आपके ब्रेन में जाता है और दूसरी तरफ आपको फीवर आता है। तो माइल्ड सिम्टम्स में क्या होता है, खांसी रहेगी और फीवर आएगा, बराबर है। अगर ज्यादा हो गया तो फिर क्या होता है कि अगर ये कचरा जमा होता ही गया या यहाँ पे होता ही गया, तो फिर निमोनिया होता है। तो आपको सबको मालूम है कि निमोनिया होता है। फिर ये निमोनिया क्या होता है कि पूरे लंग में फैल जाता है। तो निमोनिया जब होता है उस टाइम पे खांसी बढ़ जाती है, फीवर बढ़ जाता है,
और सांस में तकलीफ, क्योंकि जो आपका जो लंग का जो बलून का जो एरिया है वो धीरे धीरे ऑक्यूपाई होता जा रहा है, तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। तो पूरा ये यहाँ पे हमको निमोनिया बोलते हैं। जब पूरा लंग में फैल जाता है तो उसको हम बोलते हैं ARDS, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं। मीन्स कि अब इसको वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे जो हुआ लंग में, तो पूरे बॉडी में भी सेम मैसेज जाता है। तो पूरे बॉडी में अगर ये ब्लड वेसल्स है ना, तो उसमें से सब लीकेज चालू हो जाता है, फिर किडनी शट डाउन होने लगती है, फिर हार्ट अटैक आता है, फिर स्ट्रोक आता है, फिर पूरा सिस्टम फेलियर हो जाता है। तो फिर शायद ही आदमी बच पाता है। तो आपको भी अभी मालूम हो पड़ गया है कि भी सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कि जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं तो आप अपने खुद डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ यहाँ तक सिम्टम्स है, सब सर्दी जुकाम है, थोड़ा बहुत सोर थ्रोट है, तो समझ लेना कि यहाँ से नीचे नहीं गया, आपकी इम्यूनिटी ने यहाँ पे उसको अटका दिया है। अगर खांसी चालू हो गया तो मालूम पड़ जाता है कि भाई थोड़ा शायद नीचे गया है। और जब आप डॉक्टर के पास आते हो तो डॉक्टर हम क्या करते हैं, वही सिम्टम्स आपको पूछते हैं कि आपको ये, आपको मालूम होगा कि जब फोन पे सर्वे करते हैं तो यही सिम्टम्स पूछते हैं कि भाई आपको ये है, वो है, ये, तो उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि शायद उसको कोरोना है, नहीं है। फिर दो स्पेसिफिक सिम्टम्स कोरोना की क्या है कि कई लोगों को जो स्मेल होती है ना, जो उस गंध, वो आना बंद हो जाता है और टेस्ट चेंज हो जाता है, तो ये स्पेसिफिक है कोरोना के। अगर फ्लू होता है तो उसमें आपको बॉडी एक ज्यादा होता है, तो कोरोना में बॉडी एक इतना ज्यादा नहीं होता है। तो जब आप डॉक्टर के पास आते हैं, अपने जीपी के पास जाते हैं, तो वो क्या करते हैं बेसिकली, कोई ऐसे स्पेसिफिक साइंस नहीं है, तो ये स्टेथोस्कोप से हम सुनते हैं, आपका जैसे लंग में सुनते हैं, तो हमको थोड़ा क्रैकल्स जो ऐसे साउंड सुनाई पड़ते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि शायद उसको निमोनिया होना चालू हो गया है। फिर गला देखते हैं, गले में रेडनेस है कि नहीं, ऐसा देखते हैं, लेकिन कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि उसके मालूम पड़ जाता है कि नहीं यही है कोरोना। तो सिम्टम्स हो गए, साइंस हो गए, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन आता है। इन्वेस्टिगेशन आप सबको मालूम है कि भाई जो उसका गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं वो है स्वॉब टेस्ट। तो स्वॉब में नेजल स्वॉब लेते हैं, तो नेजोफेरेंजियल, तो ये इसको नोज बोलते हैं, और जो पीछे है उसको फेरिंग्स बोलते हैं। तो पूरा जो स्वॉब उसमें पीछे डाल के बहुत बहुत अनकंफर्टेबल होता है। अगर आपने ट्रम्प को सुना होता तो ट्रम्प ने बताया था कि मैंने भी ये स्वॉब किया, इट इज वेरी पेनफुल, नॉट पेनफुल बट वहाँ पे बेसिकली आपको बहुत थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है, तो स्वॉब होता है। फिर अगर नीचे चला गया तो बलगम निकलती है, तो उसका भी सैंपल ले सकते हैं। फिर बहुत नीचे चला गया तो जब पेशेंट एडमिट होता है तो अंदर जाके और सक्शन करके भी उसका सैंपल ले सकते हैं। तो ये कोरोना के स्पेसिफिक टेस्ट हो गए। और उसके बाद में कहीं और भी टेस्ट कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, उसके हमको मालूम पड़ता है कि उसका व्हाइट काउंट ऊपर गया है, नीचे गया है, फिर प्लेटलेट काउंट नीचे गया है, लिम्फोसाइट्स ऊपर है, नीचे है, उससे थोड़ा मालूम पड़ता है। फिर उसके हम सी रिएक्टिव प्रोटीन करते हैं, इंटरल्यूकिन वाला टेस्ट करते हैं, ट्रांसफेरिन का टेस्ट करते हैं, तो उससे कोरोना ही है ऐसा मालूम नहीं होता है। बट जब ये पूरा साथ में रखते हैं तो मालूम पड़ता है कि कोरोना है, उसकी सीवियरिटी क्या है वो मालूम पड़ता है। फिर चेस्ट एक्सरे करते हैं, अगर आपको खांसी ज्यादा है तो चेस्ट एक्सरे करते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि भाई निमोनिया है कि नहीं। और आजकल आप लोगों ने नाम सुना होगा HRCT, हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन, बहुत डिस्कशन में है। तो मैं ये बता दूं कि अभी उसका कोई प्रूव नहीं हुआ है। थोड़ा HRCT की बात कर रहा हूँ कि HRCT, आई डोंट नो आपने सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन डोंट जंप इनटू HRCT राइट अवे, क्योंकि उससे कोरोना है ऐसा मालूम, उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि आपको शायद निमोनिया हो सकता है, और ग्राउंड क्लास ओपेसिटी दिखाई देती है और थोड़े बहुत फाइंडिंग दिखाई देते हैं, लेकिन उससे कोरोना कंफर्म नहीं होता है। अगर कोरोना पॉजिटिव है उसके बाद में सीटी कराते हैं तो मालूम पड़ता है कि उसकी सीवियरिटी क्या है। तो अगर बिन जरूरी उसमें पैसा खर्च करने के, क्योंकि कई लोग, मुझे ऐसा फोन भी आता है कि ये मुझे फीवर भी नहीं है, खांसी भी नहीं है, लेकिन कुछ कई लोगों ने बोला कि मैं सीटी स्कैन करा लूँ तो मालूम पड़ेगा कि मुझे कोरोना है। नहीं 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 नहीं, ऐसा पैसा फालतू में जाया मत करना, बराबर है। तो ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का बात हो गया। और घर में आप क्या कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के तौर पे, तो एक ही चीज आप कर सकते हैं, वो पल्स ऑक्सीमीटर आप कर सकते हैं। इंडिविजुअली आई थिंक 4-5 हज़ार रुपए का आता है, मुझे कुछ एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप पूरे अपने बिल्डिंग में एक परचेस कर सकते हैं, तो क्योंकि सबको तो जरूरत पड़ने वाली नहीं है, लेकिन सर्कुलेट कर सकते हैं यार ना, ये स्वर का जो पूरा ग्रुप है, तो आप स्वर में 2-3 ऐसे परचेस कर सकते हैं कि भी चलो हमारे पास ऑक्सीजन मशीन है, किसी को अगर खांसी बुखार चालू हो गया तो हमसे बोरो कर सकता है। तो रोज आप पल्स ऑक्स चेक करने का, उंगली पे रखने का, बहुत सिंपल है, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उंगली पे रख देने का। तो आप रीडिंग कर सकते हैं कि उसका रीडिंग क्या आता है, कि अगर 92% से ज्यादा है और आपको सांस की तकलीफ नहीं है तो ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन जब हमारे पास आप आते हैं
तो हम आपको 3 कैटेगरी में डिसाइड करते हैं कि भाई आप हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है या लो रिस्क है। तो हाई रिस्क वाले आप कैसे हो सकते हैं? हाई रिस्क मीन्स कि अगर आपकी उम्र 60-65 से ज्यादा है, बराबर है, तो ऑब्वियसली आपका रिस्क हाई है। दूसरा क्या है कि आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मीन्स क्या कि अगर आपको डायबिटीज है, 1 सेकंड, तो डायबिटीज अगर है आपको तो पॉसिबिलिटी रहती है। अगर आपको कैंसर कभी पहले हुआ है या अभी कैंसर है, आप कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहे हैं, तो आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज गिनाए जाते हैं। और अगर आपको किसी को एड्स है और अदर डिसीजेज है जो क्रॉनिक बोलते हैं, लंग का प्रॉब्लम है, किसी को ऑलरेडी की सार्कोइडोसिस है, किसी को पहले टीबी हुआ है, या कंटिन्यूसली स्मोक, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो दिस शुड बी अ टाइम टू स्टॉप स्मोकिंग, क्योंकि स्मोकिंग इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आपको रिस्क ज्यादा है। किसी को पहले स्ट्रोक आ गया है, किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, तो ये सब बोलते हैं हाई रिस्क। तो उसका मतलब क्या कि अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इधर मॉडरेट रिस्क और लो रिस्क। अगर 20 से 64 की उम्र है आपकी, तो आपका रिस्क कैटेगरी हो गया, मॉडरेट रिस्क हो गया आपका, और ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप 20 से ज्यादा कम है तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू जीरो है। तो अगर आपके बच्चे के लिए आपकी चिंता हो रही है कि भाई मेरा बेटा 10 साल का है, 15 साल का है, तो उसको तो होने की संभावना बहुत ही कम है, ऑलमोस्ट जीरो है। तो अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं है ना, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि आपको होने की कोरोना का इन्फेक्शन लगने की संभावना ही बहुत कम है, लेस देन 1% है। और अगर लग भी गया तो आपको सीरियस प्रॉब्लम होने की संभावना उससे भी कम है। अगर हुआ भी तो मरने की संभावना तो उससे भी कम है। तो दैट शुड गिव यू पीस ऑफ माइंड कि आपका रिस्क कैटेगराइजेशन कर देने का। अगर आपको रिस्क है हाई रिस्क तो या तो फिर रिस्क नहीं लेने का। तो स्ट्रेटेजी क्या है कि भी इसको हम डील कैसे करें, तो उसके बारे में अब आपको मालूम पड़ गया कोरोना क्या है, कैसे किल करता है, अपना साइकोलॉजिकली हम कैसे वो स्टेजेस में से गुजरते हैं, कोरोना के सिम्टम्स क्या होते हैं, साइंस क्या होती है, कोरोना का इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, क्या कराना चाहिए क्या नहीं कराना चाहिए, और अभी उसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है। अभी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ट्रीटमेंट में डॉक्टर क्या करेंगे, हम क्या करेंगे। तो डॉक्टर क्या करेंगे उसके बारे में आपको थोड़ा बताने जा रहा हूं, तो ताकि आपको मालूम पड़ेगी कि आपके रिलेटिव को कभी एडमिट किया है आपने, तो वहां पे डॉक्टर क्या कर रहे हैं, क्योंकि पूरा कंफ्यूजन रहता है। एक बार जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हॉस्पिटल गया सो गया, दो ही उसमें हो सकते हैं, अदर वो घर आएगा या फिर वो ईश्वर के घर जाएगा, बराबर है, 50-50 चांसेस है। तो अगर ईश्वर के घर चले गए तो हमको तो यही रहेगा कि लास्ट टाइम जब हॉस्पिटल गए उस टाइम पे आपने देखा है, उसके पहले देखा नहीं, उसके बाद डॉक्टर जो भी करेंगे आपको फोन पे बताएंगे या फिर आप वीडियो कॉल करके जो भी बात करेंगे वही है, लेकिन फिजिकली तो आप देख पाएंगे नहीं, सब पूरा डॉक्टर के हाथ में ही है। तो आप उसमें कुछ नहीं करने वाले। तो आप क्या कर सकेंगे उसके बारे में मैं क्या बता रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, बराबर है। जो भी मैं बता रहा हूँ वो ऐसा नहीं कि कोरोना के लिए कामगार कीमिया है, ऐसा नहीं है, कोई कुछ भी प्रूवन नहीं है। जो भी कर रहा हूँ वो मैं मेरे कुछ लॉजिक की वजह से कर रहा हूँ और कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है और कुछ मेरा जस्ट पर्सनल ओपिनियन है। तो आपको ये सब मानना नहीं मानना वो आपको खुद को तय करना है कि भाई ये राकेश ने तो बोला था कि ये करने से अच्छा रह सकता है। तो ओनली प्रूफ इज कि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, मुझे अभी कुछ नहीं हुआ है, मैं टोटली हेल्दी हूँ। तो आप ये इसको कह सकते कि भाई ये तो पूरा पेशेंट के बीच में रहता तो उसको नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं होएगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि भाई ट्राई करने में कुछ हर्जा नहीं है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप थोड़ी चीजें बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले तो हम सब इंडियन है, तो हमारा तो पहला तो जो दादी मायनो वैद्य कहवाय ये दैट इज फर्स्ट थिंग दैट वी ऑल वांट टू डू, कि भाई ऐसा घर में कुछ है जो घरगथ्थू उपचार है जो मैं कर सकता हूँ। इसमें सबकी खुद की जो कॉकटेल बोलता हूँ मैं क्या होती है कॉकटेल मीन्स की जो मेरा जो स्टैंडर्ड है वो मैं क्या करता हूँ कि हर सुबह मैं पानी लेता हूँ, उसमें हल्दी डालता हूँ और हल्दी में थोड़ा ब्लैक पेपर भी डालता हूँ, क्योंकि जो हल्दी का जो एब्सॉर्प्शन है ना वो ब्लैक पेपर डालने से 200% बढ़ जाता है। सिर्फ आप हल्दी खाएंगे तो वो एब्सॉर्ब इतनी नहीं होती है, इसलिए उसमें पेपर डालना। तो मेरी वाइफ ने क्या किया कि हल्दी और पेपर को मिक्स करके एक उसने मुझे ऐसा इतना डब्बी बना के दे दिया है तो मैं उसमें से 1 चम्मच डाल देता हूँ। फिर उसमें मैं नींबू निचोड़ता हूँ, क्योंकि नींबू का विटामिन सी होता है उसमें। तो मालूम है कि भाई विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ सकती है, 100% प्रूवन नहीं है लेकिन बढ़ सकती है, तो मैं नींबू नींबू डाल देता हूँ। फिर
जिंजर डालता हूँ उसमें, आदू। तो आदू से भी मालूम है उसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और इम्यूनिटी बढ़ती है उससे। तो आदू डाल देता हूँ। फिर हनी डालता हूँ, हनी। तो हनी में क्या होता है कि हनी लोकल हनी होता है ना, तो उसमें जो लोकल एलर्जेंस होता है वो जो उसकी हनी की जो हनी भी होती है वो लोकल पोलन्स में घूमती रहती है, तो लोकल इम्यूनिटी उससे बढ़ जाती है। तो आपकी जो मुंबई में अगर है तो आप तो मुंबई में जो बना होता है ना हनी, वो डालते तो अच्छा रहता है लोकल। अमेरिका, मेड इन अमेरिका से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, मेड इन चाइना से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, लोकल हनी से इम्यूनिटी में फर्क पड़ता है। तो वो मैं चार डाल के फिर गर्म करके पी जाता हूँ। कई लोगों का ऐसा मानना है कि हनी को गर्म नहीं करना चाहिए, तो वो आपका खुद का है कि गर्म करना है नहीं करना है, तो वो मैं पी लेता हूँ। तो बहुत अच्छा रहता है। अभी सुबह से मैंने उसके अलावा कुछ नहीं पिया है, खाया भी नहीं है कुछ। और यू नो ऑब्वियसली सिट्रस फ्रूट, ऑरेंज से सब खा सकते हैं आप। और कई लोगों का स्टमक का प्रॉब्लम होता है, तो बोले कि मुझे नींबू नहीं ले सकते, तो आप विटामिन सी की टैबलेट ले सकते हैं। तो ये मेरा देसी देसी उपचार हो गया। और दूसरा क्या है कि आपको मालूम है कि लंग में जो कोरोना अंदर जाता है तो लंग में जो है वो मेन तो वही रहता है। तो एक बार जाने के बाद तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जाने से पहले आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पहले तो क्या होता है कि उसको नीचे जाने से अटकाना है, तो यहाँ पे ही कुछ करना है, बराबर है कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ऑब्वियसली मास्क पहनो तो ओके, ऐसा कोई वादा नहीं है, लेकिन मास्क से इतना कोई प्रोटेक्शन मिले ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो आप मास्क पहन सकते हैं, स्पेशली क्राउडेड प्लेस में है तो। फिर somebody आस्क्ड मी कि भाई और कैसे फैल सकता है, तो सबको मालूम है कि भाई आंख, नाक और मुंह को टच करने से फैलता है, तो आप प्रोटेक्टिव ग्लासेस पहन सकते हैं। तो वो अंदर आने से अटकाना है, बराबर है। और दूसरी क्या बात हो गई कि ऐसा हो गया कि भी आपके बिल्डिंग में ही किसी को कोरोना पॉजिटिव आ गया है, आपके घर में किसी को है, तो आप क्या करेंगे? तो उसका जो वायरस का लोड आपको घटाना है कि वायरस कितने अंदर दाखिल होंगे आपको मालूम नहीं है, बराबर है। तो उसको रोकने के लिए आप कर सकते उतना करेंगे कि जिसको हुआ है उसको क्वारंटाइन में रख दिया है। लेकिन आप क्या करेंगे मास्क के अलावा कि सिंपल जो सॉल्ट वाटर, जो नमक का पानी गर्म करके गार्गल कर सकते हैं, तो पूरा ये गर्मी से वायरस मर सकता है। या फिर स्टीम इनहेलेशन ले सकते हैं। ये जो भी मैं बता रहा हूँ किसी ने अभी प्रूव नहीं किया, ये लॉजिकली मेक सेंस और उसका कोई गैर फायदे नहीं है, इसलिए करने का मैं बोल रहा हूँ, बराबर। और मैं खुद भी करता हूँ। तो आप स्टीम इनहेलेशन लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे स्टीम इनहेलेशन ले करो, दिन में एक दो बार ठीक है कि स्टीम इनहेलेशन ले, उससे आपके स्किन के पोर भी खुल सकते हैं और आपको ओवरऑल ठीक रहता है। तो दूसरी बात ये कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके घर में किसी को पॉजिटिव है, किसी के पहचान में पॉजिटिव है, तो आप बिटाडिन के गार्गल कर सकते हैं। जो पानी, गर्म पानी में बिटाडिन, जो आयोडीन आता है ना, आई डोंट नो इंडिया में कौन सा ब्रांड है, बिटाडिन होगा, कुछ भी होगा, तो वो डाल के एक दो बूंद डाल के उसके गार्गल, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक है, तो उससे आप सब जो भी है उसको क्लियर कर सकते हैं। या किसी को क्रॉनिक साइनस का प्रॉब्लम है, तो ऐसे जो ड्रॉपर आता है ना, उससे वो बिटाडिन वाला सॉल्यूशन साइनस में भी डाल सकते हैं। या फिर नॉर्मल सेलेन का जो सॉल्यूशन आता है वो भी नाक में डाल के पूरा रिंस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कचरा जमा ना हो, इसलिए घर साफ करने का बेसिकली। तो अब तक हम क्या करते हैं कि मे बी साल में एक बार करते थे, दिवाली पे टाइम के घर साफ करते थे। अभी दिवाली रोज ऐसा मानने का, तो रोज साफ करने का, तो रोज स्टीम इनहेलेशन लेने का, गार्गल करने का। फिर जिसको साइनस का क्रॉनिक प्रॉब्लम है उसको वो क्लीन करते रहना चाहिए। यहाँ पे हमारे यहाँ वो साइनस रिंस रेडीमेड मिलता है, आई एम श्योर इंडिया में भी मिलता होगा, तो वो आप उससे साइनस रिंस कर सकते हैं। सबको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसको क्रॉनिक साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है उसके लिए वो अच्छा रहता है, तो आप वो कर सकते हैं। फिर फेफड़े को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो दो तीन एक्सरसाइज मैं बताता हूँ। आप सब योगा प्राणायाम तो आप सब आप खुद को मालूम है, क्योंकि उसका लॉजिक क्या है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्यों करने की, कि आप तो सब म्यूजिशियन है, तो आपको ऑटोमेटिकली जब गाते हो तो आपकी तो लंग फेफड़े मजबूत हो ही जाते हैं। लेकिन हमारे जैसे लोगों को फेफड़े मजबूत बनाने पड़ते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं कि ऑब्वियसली योगा मेडिटेट करते हैं। तो योगा में जो प्राणायाम वाला हिस्सा है उसका लॉजिक क्या है कि नॉर्मली आप जब अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं नॉर्मल बात करता हूँ, तो जो हमारे फेफड़े में हवा जाती है, हवा बाहर आती है, जाती है बाहर आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, TIDAL, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मीन्स की नॉर्मल वॉल्यूम, तो वो 500 ml जितना होता है, कि हर सांस में हम 500 ml हवा अंदर लेते हैं, 500 हवा, हेलो, 500 cc हवा हम बाहर निकालते हैं। तो वो नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे कि
अगर आपको कुछ रियाज करते हैं और जैसे सारे गामा एकदम कंटिन्यूसली, जैसे वो शंकर महादेवन का है ना कि वो फास्ट में गा, तो अगर एक सांस में पूरा गाना है तो आप क्या कर सकते हैं, एकदम पूरी सांस अंदर लेते हैं। अगर पानी में स्विमिंग करते हैं तो पानी के अंदर जाते हैं तो आप क्या करते हैं कि पूरी ऊंडी सांस ले लेते हैं, बराबर। तो उसमें आपने क्या किया कि एक्स्ट्रा एयर अंदर ले, जो एक्स्ट्रा एयर है वो क्या है, वो ऑक्सीजन हो गया, बराबर है, बाहर से आता ऑक्सीजन होता है। तो उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आपने वो अंदर ले लिया। वो नॉर्मली हम नहीं लेते, जब भी जरूरत पड़ती है तभी लेते हैं, बराबर है। फिर होता है अगर आप दौड़ते या फिर इवन हंसते तो जैसे हंसते तो फेफड़े में से हवा एक्स्ट्रा बाहर निकालते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं कि ज्यादा ऑक्सीजन भी अंदर नहीं लेते और पूरा कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर नहीं निकालते हैं। तो योगा या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज का पर्पस क्या है कि ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेने का और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर निकलता, उसी प्रोसेस में जो आपके फेफड़े हैं उसको इतने मजबूत बनाना कि आपके, उसको हम वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, कैडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व, तीनों को मिला के जो होता है उसको वाइटल कैपेसिटी। हम नॉर्मली वाइटल कैपेसिटी में ब्रीथ नहीं करते। जो लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं ना वही उस टाइम पे वाइटल कैपेसिटी में ब्रीथ करते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी में ब्रीथ करते हैं तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन भी दिमाग में ज्यादा पहुंचता है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो वाइटल कैपेसिटी आप ऐसा बॉक्स बना लेने का दिमाग में, ऐसे करते हैं। तो वाइटल कैपेसिटी में एक बॉक्स यहां से चालू किया, तो जैसे मैंने ब्रीदिंग चालू किया ना तो ये बॉक्स की एक लाइन हो गई, बराबर है। तो ये फिर मैं नीचे आऊंगा बॉक्स में, तो वहां तक ब्रीदिंग होल्ड करना है। तो ब्रीदिंग होल्ड किया, फिर निकालना है, ये निकाल दिया। उसके बाद में फिर होल्ड करना है, बराबर। तो ऐसे दिमाग में रखना है कि देखो मैं करके दिखाता हूं। तो ये सिंपल टेक्निक है। इंस्पिरेशन, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। ऐसे जब जितना भी टाइम मिले थोड़ी एक्सरसाइज, जिसको भी, स्पेशली जिसने स्मोकिंग किया है पहले, ऑब्वियसली अभी से छोड़ देने का। लेकिन जिसके लंग में पहले प्रॉब्लम हुआ है, टीबी हुआ है, निमोनिया हुआ है और सीओपीडी की बीमारी है, तो इसके लिए तो बहुत जरूरी है। फिर दूसरी एक्सरसाइज आती है बलून वाली, थ्री एटेम्प्ट बलून। तो इसमें क्या है कि बलून को 3 बार ऐसे इन्फ्लेट करने का। देखो ये एक बार हो गया, तो मैंने पूरा किया। अभी दूसरी बार, दूसरी बार, तो ये तीसरी बार हो गया, बराबर है। अब मैं बोले बिना करके दिखाता हूं, बराबर है। बोले बिना 3 बार करके दिखाता हूं। तो ये 3 बार बलून फुल किया। तो ये 3 टाइम्स बलून एक्सरसाइज करेंगे। तो आप खुद चेक कर सकते हैं। करने से पहले आप आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक करो, 90 to 93% होगा। ये करने के बाद ऑलमोस्ट 100 हो जाएगा। इसके लिए, इससे क्या होता है कि पूरे आपके लंग्स खुल जाते। तो ऐसे आप आपके लंग को हेल्दी रख सकते हैं। अगर आपके पास बलून नहीं है तो आप इमेजिनरी बलून भी कर सकते हैं, जैसे तो ये 3 बार बलून, ये जो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरापिस्ट होते हैं ना, वो ये बलून का इस्तेमाल करके ऐसे ही पेशेंट को एक्सरसाइज कराते हैं, बराबर है। तो आप घर पे भी ये सब कर सकते हैं। और तीसरी एक्सरसाइज क्या है, ये बॉटल में पानी लेने का, और ये स्ट्रॉ है। तो स्ट्रॉ से आप जस्ट ब्लो करो, तो ये भी इजी है करने का।
तो इससे लंग को आप अगेंस्ट रेजिस्टेंस ब्लो करते हैं, तो लंग को काम करना पड़ेगा ज्यादा, तो इसकी वजह से आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ऐसे आप लंग को हेल्दी रख सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये जो हमारा फेफड़ा है ना, तो नॉर्मली ये ऐसे पीछे बैंड हुआ होता है, तो जो मेजर पार्ट होता है ना वो बेस पे होता है। तो अगर आपको सांस में तकलीफ चालू हो गई, पल्स वॉक्स 92% है, ऐसे कि यार मुझे हॉस्पिटल जाना नहीं है, तो क्या कर सकते हैं कि आप पेट के बल सो सकते हैं। नॉर्मली हम ऐसा एडवाइस करते हैं कि पेट के बल पर नहीं सोना चाहिए, लेकिन लंग के लिए पेट के बल पर सोना बहुत जरूरी है। कि जैसे अगर ये है, तो अगर ये मेरा तकिया है, तो पेट के बल पर ऐसे सोने में थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन अगर आप पूरा ऐसे सो जाते हैं तो आप सो सकते हैं पेट के बल पे। पेट के बल पर सोएंगे तो क्या होगा कि यहाँ के जो लंग है ना वो एक्सपेंड ज्यादा होंगे, क्योंकि हमारा मेजर पार्ट लंग पीछे होता है। अभी आप गूगल पे जाके देखेंगे तो उसको बोलते हैं प्रोन इंट्यूबेशन। यहाँ पे भी जो कई लोगों को इंट्यूबेट करते हैं ना कोरोना में, तो उसको उल्टा सुला के ही रखते हैं, तो उससे उनका ऑक्सीजन अच्छा रहता है। तो आपको तो वेंटिलेटर पे जाने की जरूरत ना पड़े, ऐसा ही मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन घर पे अगर आपको कुछ भी लंग का प्रॉब्लम ऑलरेडी है और सांस में कोई भी तकलीफ है, तो आप ऐसे उल्टा हो सो सकते हैं, पेट के बल पे सो सकते हैं, तो उससे आपके लंग मजबूत होते जाएंगे। तो ये सब बात हो गई, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की बात हो गई। अब खाने की बात में करेंगे कि खाने में तो ऑब्वियसली अपना तो वेजिटेरियन डाइट है, तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसके साथ साथ में प्रोटीन क्या होता है कि हम वेजिटेरियन होते हैं कि ज़्यादा प्रोटीन नहीं लेते। वैसे तो मैं जन्म से जैन हूँ, तो जैन जो जो भी होंगे उसको मालूम होगा कि हर तीसरे दिन पे तिथि आती है, तो तिथि में सब्जी नहीं खाते और खाते हैं हम बेसिकली कठोल, लेग्यूम और दाल चावल, वो मग और वाल जैसा खाते हैं। तो उस पर से लॉजिक है कि उसमें से प्रोटीन मिलता है ना। प्रोटीन खाने से कोरोना चला जाएगा ऐसा मत सोचना, लेकिन हमारी बॉडी में जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी डेवलप होती है ना, वो बी सेल्स रहती है। बी सेल्स जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, ANTIBODI, एंटीबॉडीज मीन्स ये जो कोरोना है उस पे चिपक जाते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जो एंटीबॉडी जो होते हैं ना वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो प्रोटीन खाने से कोरोना ना जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप में प्रोटीन की कमी है तो जो एंटीबॉडी बनेगा, जो रॉ मटेरियल होगा वो आपके पास सफिशिएंट नहीं होगा। तो अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो फैक्ट्री काम कैसे करेगी? फैक्ट्री काम नहीं करेगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर कोरोना को किल कैसे करेंगे? तो ऐसे साइकिक होके पूरा प्रोटीन खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इनफ प्रोटीन नहीं लेते तो प्रोटीन का सप्लीमेंट लेना चाहिए, या फिर दाल जैसा है उसको बढ़ा देना चाहिए। और उसके बाद में आता है जो बोलते हैं ना प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स मीन्स क्या है? जो दही खाते हैं, दही में क्या होता है कि बैक्टीरिया होते हैं, प्रोबायोटिक्स लैक्टोबैसिलस होते हैं, तो वो हमारे गट में, स्टमक में होते ही है। लेकिन जैसे जैसे हम जैसे बच्चे होते हैं ना, तो बहुत सारे होते हैं, तो बच्चे कितने हेल्दी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे वो हमारे स्टमक में से वो प्रोबायोटिक वाले बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, मीन्स बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं और गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। तो प्रोबायोटिक लेना जरूरी है। एक सेकंड में सबको म्यूट करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, हफ्ते में 1-2 बार जब प्रोबायोटिक के सैचेट आते हैं वो ले लेता हूँ। फिर दही भी खाता हूँ। दही खाने से आपके शरीर में जो प्रोबायोटिक वाले बैक्टीरिया है वो बढ़ेंगे, तो आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ सकती है। कोरोना में डायरेक्ट कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं है, लेकिन ये सब जो बातें कर रहा हूँ वो इम्यूनिटी बढ़ाने की बात कर रहा हूँ मैं। और नेक्स्ट वन है वो हॉट एंड कोल्ड थेरेपी, वो मैं खुद करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करता हूँ वो बताऊंगा, उसके बाद में उसका लॉजिक बताऊंगा। तो सुबह जब मैं शावर में जाता हूँ, तो शावर में ठंडा पानी तुरंत ही इमीडिएटली मेरे सर पे, स्पेशली चेस्ट की साइड पे, बैक की साइड पे आने देता हूँ। तो क्या होता है कि एकदम ऐसे शिवरिंग हो जाता है। तो उससे पूरा हमारी जो इम्यूनिटी का जो बी सेल्स और टी सेल्स है वो जागृत हो जाते हैं, इम्यूनिटी एकदम अवेक हो जाती है। फिर थोड़ा ठंडा चलता है, फिर धीरे धीरे पानी गर्म होता है, तो फिर गर्म पानी आता है, फिर मैं ठंडा करता हूँ, ठंडा गर्म ऐसे 2-3, जब जितना भी आपके पास टाइम हो। अगर शावर है, ऐसा शावर है ठंडा गर्म वाला, तो वो कर सकते हैं। अगर नहीं है ऐसा शावर, तो 2 बाल्टी में एक में गर्म एक में ठंडा पानी लेके कर सकते हैं। एक बार ठंडा पानी डाला, एक बार गर्म पानी डाला, एक बार ठंडा पानी डाला, एक बार गर्म पानी डाला। तो आपका जो कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है ना बॉडी में, उससे बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो सेम लेवल पे हो जाती है। लेकिन हमारा काम क्या है कि उसको अभी एक्स्ट्रा जगाना है, बराबर है, सावधान ज्यादा करना है। तो उसके लिए ठंडा गरम करने का। तो
उसका लॉजिक मैं बताता हूँ। लॉजिक क्या है कि आपको शायद मालूम है कि सिफिलिस नाम का एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड रोग है जो सेक्स की वजह से होता है। तो वो बहुत जानलेवा बीमारी थी और उसका ट्रीटमेंट पेनिसिलिन करके है, जो अभी इतना क्योरेबल है कि अगर पेनिसिलिन का इंजेक्शन दिया तो आपको वो मिट जाएगा। लेकिन जब पेनिसिलिन की शोध हुई लगभग 80-90 ईयर्स अगो, उससे पहले उसको कैसे ट्रीट करते थे कि अगर किसी को सिफिलिस हुआ ना तो उसकी वेन्स में मलेरिया के जंतुओं को डालते, मलेरिया के पैरासाइट को, क्योंकि मलेरिया से क्या होता है कि बुखार आता है। तो आपको भी मालूम होगा जब भी आप बीमार होते हैं, इन्फेक्शन होता है तो बुखार आता है, तो बॉडी की मैकेनिज्म है कि आपके जो मैक्रोफेजीज बी सेल्स को जागरूक करने की बॉडी की मैकेनिज्म है। तो वो पहले क्या करते थे कि जो सिफिलिस के ट्रीट करने के लिए पेशेंट को मलेरिया करते थे। मलेरिया में क्या होता है, फीवर आता है तो उससे सिफिलिस के जीवाणु मर जाते थे और उसके बाद में वो पेशेंट को क्विनाइन देके फिर मलेरिया को ट्रीट करते थे। उसका पूरा लॉजिक ये है। लेकिन जब से पेनिसिलिन आया उसके बाद में हॉट और कोल्ड थेरेपी का पूरा चला गया, क्योंकि अभी उसकी जरूरत नहीं कि इसको इंजेक्शन दे दिया और उसको ट्रीट हो गया। तो आपकी इम्यूनिटी जगाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि हॉट एंड कोल्ड थेरेपी आप कर सकते हैं। और वैसे भी अगर कोरोना का चिंता नहीं भी है तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि आप पूरे बेकअप हो जाते हैं फिजिकली भी। जैसे ठंडा पानी गिरता है एकदम हो जाता है बराबर, स्पेशली ठंडी में ठंडा पानी में नहाने का बहुत मजा आता है। फिर नेक्स्ट है मसाज। तो मसाज का बहुत इंपॉर्टेंस की जो हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी के लिए जो होता है, 3 पाइपलाइन होती है हमारे शरीर में। एक पाइपलाइन होती है उसको बोलते हैं हम बोलते हैं आर्टरीज। आर्टरीज का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे हार्ट में से क्लीन ब्लड ऑर्गन्स पे ले जाती है उसको आर्टरीज बोलते हैं, जो क्लीन ब्लड ले जाती है। फिर होती है वेन्स। वेन्स क्या मतलब क्या हो गया कि जो अनक्लीन ब्लड होता है उसको वापस लाती है लंग में ताकि उसको क्लीन कर सके। और तीसरी पाइपलाइन होती है हमारे शरीर में, उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, LYMPHATIC, लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है कि वो पूरे शरीर में फैली हुई होती है। तो लिम्फेटिक सिस्टम सर से लेके पांव तक होती है। तो वो हमारी जो इम्यूनिटी वाले जो सेल्स होते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, उसको वो पूरा सर्कुलेट करती है। वो पूरा हमारा जो CBI बोलते हैं ना, हमारे यहाँ FBI बोलते हैं, वो इंटेलिजेंस सिस्टम है हमारा, कि वो ध्यान रखती है किसी भी दुश्मन आया तो उस पर अटैक कैसे करना है, उस पर वो लिम्फेटिक सिस्टम ध्यान रखती है। आपको मालूम है आपको कहीं पे इन्फेक्शन हुआ, कहीं पे लगा हुआ, अगर यहाँ पे हाथ पे कुछ लगा तो कई बार जो आपके एक्सिला में बगल में गांठ हो जाती है, वो लिम्फ नोड होते हैं, तो वो एनलार्ज हो जाता है। तो दैट मीन्स कि वो वर्क करने लगे कि जो भी इन्फेक्शन है उसको खत्म करने का है। तो लिम्फेटिक सिस्टम को आप जागरूक कैसे रख सकते हैं? तो हॉट एंड कोल्ड शावर की तो बात हो गई। अब दूसरी बात आती है कि मसाज की। तो मैं क्या करता हूँ कि शावर में आने के बाद अपने हाथ से खुद को ऑयल मसाज करता हूँ। अपने इंडियन कल्चर में तो मालूम है कि मसाज का बहुत इंपॉर्टेंस है, और उसका लॉजिक है कि जो लिम्फेटिक सिस्टम होती है वो स्किन के नीचे होती है, तो डायरेक्ट तो आप उसको टच नहीं कर सकते, बराबर है। तो इनडायरेक्टली आप जब स्किन को मसाज करते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम को भी आप मसाज कर रहे हो, बराबर। तो जब मसाज करते हो ना तो ऐसे नहीं करने का, हार्ट की ओर जाने का, रिवर्स में जाने का, ऐसे पीछे 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 जाने का। आप नीचे से भी जाते तो ऊपर ऊपर ऐसे आने का, ऐसे मसाज, ऐसे मैं ऑयल से मसाज करता हूँ मेरी पूरी बॉडी के। 2 मिनट लगते हैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन उससे क्या फायदा होता है कि आपकी लिम्फेटिक सिस्टम भी जागरूक होती है, प्लस आप अपनी बॉडी को जान सकते हैं। आपने किसी और की बॉडी को तो टच बहुत बार किया होगा, लेकिन व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू एक्चुअली कॉन्शियसली टच योर ओन बॉडी, बराबर है। क्योंकि जब तक आप खुद की बॉडी को टच नहीं करेंगे आप उसको पहचान नहीं पाएंगे, और जब तक किसी को आप पहचान नहीं पाएंगे उसको आप हेल्दी नहीं रख सकते। लर्न टू नो योर ओन बॉडी। किसी को यह भी मालूम नहीं होगा कि मेरी ये मिडल वाली उंगली कैसी दिखती है, वो अगर मालूम नहीं होगा आपको। देखो आपका अंगूठा कैसा दिखता है, अगर आपको उसका मेंटल पिक्चर, आपको किसी ऐश्वर्या राय का पिक्चर दिमाग में आ जाएगा, लेकिन आपका खुद का अंगूठा कैसा लगेगा वो आपको नहीं मालूम है, क्योंकि आप खुद की बॉडी को नहीं जानते हैं। तो हेल्दी रहने में बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी बॉडी के साथ सिंक्रोनाइजेशन होना है ताकि वो हेल्दी हो सके। तो मसाज है। और दूसरा क्या है कि मेरे घर पे मसाज चेयर है, तो फिर मैं 20 मिनट वो मसाज चेयर में बैठ जाता हूँ। तो कई एरिया जहाँ पे मैं खुद मसाज नहीं कर सकता हूँ तो मसाज चेयर से मसाज हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जाके मसाज चेयर का खर्चा करना है, अगर है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसका मतलब ये भी नहीं है कि कल से आप अपने स्पाउस को ऑर्डर करके चलो आओ मुझे मसाज करो। खुद को खुद का मसाज करना है, खुद को खुद की बॉडी को पहचानना है। तो ये दूसरा हो गया मसाज। फिर होता है मैं टैपिंग करता हूँ। टैपिंग में क्या है कि जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम होती है ना, कि इलेक्ट्रिसिटी जाता है कि भी एवरी फ्यू माइल्स उसके नोड होते हैं।
तो अगर आप गूगल पे देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम टाइप करना तो आपको मालूम पड़ेगा कि पूरे जगह पे हमारे लिम्फ नोड होते हैं। यहाँ पे कान के आजू बाजू में लिम्फ नोड होते हैं, फिर यहाँ पे नेक में लिम्फ नोड होते हैं। आपका कई बार मालूम होगा कि नेक में गांठ होती है कई लोगों को। फिर यहाँ पे कॉलर बोन जो होता है क्लेविकल के ऊपर लिम्फ नोड होते हैं। फिर एक्सिला में लिम्फ नोड होते हैं। फिर यहाँ पे जो थाइमस ग्लैंड है स्टर्नम के पीछे, वो पूरा हमारा लिम्फोइड ऑर्गन है, तो वहाँ पे टी सेल्स का मैच्यूरेशन होता है। फिर अगर पेट में नीचे जाओ, अगर पेट में नीचे जाओ तो यहाँ पे स्प्लीन होती है। स्प्लीन आपका बेसिकली ऑर्गन है लिम्फेटिक सिस्टम। फिर नीचे जाओ अम्बिलिकस के आजू बाजू में, तो वहां पे लिम्फ नोड होता है। फिर ग्रॉइन में होता है। आपको मालूम है कि कई लोगों को ग्रॉइन में गांठ होती है। तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे लिम्फ नोड को टैप करता हूँ। आपको मैं अपर पार्ट का टैप करके दिखाता हूँ। तो मालिश हो गई, उसके बाद में ये लिम्फ नोड है ना, तो ऐसे में उसको टैप करता हूँ जस्ट जेंटली, जैसे जस्ट लाइक इट इज माई फ्रेंड। फिर यहाँ पे नेक में टैप करता हूँ, ये सब पूरे लिम्फ नोड है यहाँ पे। फिर यहाँ पे टैप करता हूँ, फिर यहाँ पे एक्सिला में, फिर यहाँ पे थाइमस पे टैप करता हूँ। थाइमस, ये पूरा चाइनीज सिस्टम है टैपिंग का, आप गूगल पे देख सकते हैं चाइनीज टैपिंग सिस्टम, यहाँ पे करता हूँ। फिर स्प्लीन पे ध्यान रखने का, क्योंकि कई लोगों का अगर मलेरिया हो चुका है तो उनकी स्प्लीन बहुत फ्रेजाइल है। जो अमिताभ बच्चन को बताना है, वो स्प्लीन पे उसका मुक्का लग गया था, उसकी वजह से रप्चर हो गया था शायद, मेरा मानना है। तो स्प्लीन पे ज्यादा जोर नहीं देने का। अगर स्प्लीन का सॉफ्ट हो गई तो आपकी रप्चर हो सकती है। तो शांति से स्प्लीन को यहाँ पे लेफ्ट साइड पे होती है, जेंटली टैप करने का। फिर अम्बिलिकस के आजू बाजू टैप करने का, फिर ग्रॉइन पे टैप करने का। तो ये टैपिंग से आप अपनी इम्यून सिस्टम को जगा रहे हो। मैं जो भी बता रहा हूँ वो कुछ प्रूवन नहीं है, लेकिन लॉजिकली इट मेक सेंस, और करने में कुछ हर्जा नहीं है, कुछ गंवाने का है नहीं। यू एक्चुअली हैव फन डूइंग दोस थिंग्स, यू नो। तो वो टैपिंग हो गया। और टैपिंग के बाद में आता है म्यूजिक। आप सब म्यूजिशियन हो तो मुझे तो बताने की जरूरत नहीं। मैं तो अभी, आप पीएचडी वाले हो, मैं तो अभी किंडरगार्टन में हूँ। तो मैं म्यूजिक का कैसे यूज करता हूँ, मेरे जो टीचर है कांजी पे मुझे सिखाते हैं, लेकिन थोड़ा मैं और भी करता हूँ। तो मैं म्यूजिक का जो कुंडलिनी होती है अपनी, जो मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान, फिर अम्बिलिकस, फिर हार्ट चक्र, विशुद्धा चक्र, यू नो, और काम चक्र, तो सबको एक लाइन में, हमारी जो एनर्जी है उसको एक लाइन में कैसे लाए। क्योंकि दिस इज का मतलब क्या है, DISEASE, दिस इज मीन्स आप इज में नहीं हो। व्हाट इज नॉट इट इज, कि आपका जो अंदर का पूरा सिस्टम है वो इज नहीं है। तो उसको इज में लाने के सभी तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। तो म्यूजिक का मैं कैसे इस्तेमाल करता हूँ, तो जो बीज मंत्र होते हैं ना, लम वम रम यम हम शम ओम लम सो, उसका मैं सारे गाँव के साथ सिंक्रोनाइज करके पूरा उसका मैं रियाज करता हूँ। तो लम 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 लम, तो पूरा मेरा जो मूलाधार चक्र उससे जागरूक है। फिर वम 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 वम, तो वो सा से चालू करता हूँ, फिर रे पे आ जाता हूँ, फिर ग पे आ जाता हूँ। तो ऐसे सातों सुरों के साथ सातों बीज मंत्र को मैं सिंक्रोनाइज करके पूरा उसका मैं भी 5-7 मिनट रियाज करता हूँ उसका। तो उससे मेरा जो कुंडलिनी, जो पूरा अपना जो एनर्जी चक्र है, उसको जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे उसमें पूरा विश्वास है कि म्यूजिक का यही पर्पज है कि आपकी जो अंदर की जो शक्ति है उसको जागरूक करना और उसको क्राउन चक्र पे ले जाने का। तो मेरा पूरा मतलब म्यूजिक से यही है। और नेक्स्ट बात आती है मेडिटेशन की। मेडिटेशन में मैं स्पेसिफिक करता हूँ, ऐसा नहीं कि एक कोने में 20 मिनट बैठ गया, वो मेडिटेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। 2 प्रकार की मेडिटेशन मैं करता हूँ। एक तो है टॉकिंग टू माई ओन बॉडी। फॉर एग्जाम्पल कि ये मान लो कि ये बी सेल है, बराबर, कि जो मेरे शरीर में इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करता है। तो जब भी मैं आंख बंद करके ऐसे बैठता हूँ 15-20 मिनट तक, स्पेशली मैं जब मसाज चेयर में बैठता हूँ तो उस टाइम पे और कुछ करने का नहीं होता है, तो 20 मिनट तक मैं यही करता हूँ कि आंख बंद करके मैं खुद के शरीर से बात करता हूँ। ये थोड़ा क्रेजी लगेगा कि ये आदमी पूरा पागल लगता है कि खुद के शरीर से कैसे बात करने की, बट वही मैंने किया है मेरी पूरी जिंदगी में, पूरे शरीर से बात करने का। तो आप आंख बंद करके अपने बी सेल्स टी सेल्स से बात करो कि भाई अभी ये टाइम है कि पूरा स्ट्रांग होने का। मैं हर रोज तुझे मैं ऐसे काम पे नहीं बुलाता हूँ, लेकिन अभी ये कोरोना का टाइम है और मुझे स्वस्थ रहना है, तो तुम पूरी तरह से इसको पहचान लेना कि अगर कोरोना मेरे करीब कहीं पे भी आए तो ये पूरा पागल जैसा लगेगा, लेकिन जो हमारा पूरा एनर्जी फील्ड है ना, इट वर्क्स लाइक दिस ओनली। एंड मैंने तो मेरी जिंदगी में बहुत बार ऐसे प्रयोग किए हैं कि जब पेशेंट के करीब होता हूँ तो मैं खुद से ऐसे बात करने, लुक दिस गाय हैज अ बैड केस ऑफ इन्फ्लुएंजा, बट मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, और ऐसा ही होता है। लेकिन मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ एलोपैथी में ही विश्वास रखता हूँ, वो मेरा प्राइमरी है। मैं अगर कुछ हुआ तो मैं ऐसे नहीं करता, नहीं 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 अभी तो मैं ये बात करके बिठा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर
आपका कोई बोन ब्रोक हो गया तो कहीं दिमाग से वो ठीक होने वाला नहीं, उसको सर्जरी करानी पड़ेगी। तो ये आपका खुद का इंटेलिजेंस उसमें यूज करने का होता है। लेकिन जहां पे भी कोई गैर फायदा नहीं है उसमें ट्राई करने में क्या जाता है। तो मेरी ये पहली मेडिटेशन हो गई कि मैं अपने बॉडी से खुद बात करता हूँ। और दूसरी मेडिटेशन मेरी है लाफ्टर योगा। कई लोगों ने आपका नाम तो सुना होगा लाफ्टर योगा। मैं एक्चुअली लाफ्टर योगा का लीडरशिप ट्रेनिंग भी ले चुका हूँ मैं। तो मैंने एक्चुअली कई सेशन भी किए फेसबुक, कई लोगों ने देखे भी होंगे। तो लाफ्टर योगा मैं खुद करता हूँ कि लाफ में क्या है कि मैं कभी जॉनी लीवर का शो देख के भी हंस सकता हूँ, मैं कपिल शर्मा का शो देख के भी हंस सकता हूँ, लेकिन वो जो लाफ्टर है वो शॉर्ट लिव होता है। अगर कपिल शर्मा का पूरा 30 मिनट का शो देखा तो शायद उसमें 10-15 मिनट का लाफ्टर मिल जाता है। लेकिन वो लाफ्टर जो लाफ्टर का मैं हेल्थ की वजह से यूज करता हूँ। हंसने के लिए तो है, आनंद में रहने के लिए तो है, लेकिन उसके जो हेल्थ बेनिफिट है लाफ्टर के क्या क्या है कि पहले तो स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर एंडोर्फिन रिलीज होना चालू हो जाता है, तो एंडोर्फिन की वजह से स्ट्रेस कम हो जाता है। दूसरी बात, उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है। और ये पूरा साइंटिफिकली प्रूवन चीज है कि जो लोग सदा खुश रहते हैं उसकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है। क्या गुजराती में कहावत है कि नबड़ी गाय ने बगैयो घनी। दैट मीन्स के भाई दोज हु आर मेंटली वीक, दोज हु आर नेगेटिव माइंडेड, डिप्रेस, उनको फिर ज्यादा रोग होने की संभावना होती है। तो फिर आपको पॉजिटिव माइंडसेट भी हो जाता है। तो मैं लाफ्टर योगा का ऐसे यूज करता हूँ और सबको मैं सिखाता भी हूँ कि लाफ्टर योगा का ऐसे यूज करना। ये मेरे 2 मेडिटेशन नहीं हो गया। दूसरा तीसरी मैं करता हूँ वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन करता हूँ, जिसमें 20 मिनट बस बैठे रहने का और काइंड ऑफ ए मंत्रा मेडिटेशन होती है वो। तो दैट इज माई नेक्स्ट थिंग इज मैं मंत्रा मेडिटेशन भी करता हूँ। मंत्रा मेडिटेशन में कुछ भी कर सकते हैं आप। मंत्रा का भी उसका साइंटिफिक है कि आपका जो बॉडी है वो रिदम में आ जाता है। क्योंकि डिसीज कब होता है कि आपका बॉडी रिदम से बाहर चला जाता है, तब डिसीज होता है। तो यहाँ पे कई बार मैं नवकार मंत्र की मेडिटेशन करता हूँ, नॉट फॉर द रिलीजियस रीजन बट फॉर द चैंटिंग रीजन। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो। और मेनी टाइम्स आई डू गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः, जो अनुराधा पौडवाल का है वो 30 मिनट का लगा देता हूँ। तो कंटिन्यूसली जो चैंटिंग होता है उससे आपकी बॉडी रिदम में आती है। तो द होल गोल क्या है कि बॉडी, माइंड एंड सोल तीनों हार्मनी में होना चाहिए, और वो तीनों यूनिवर्स के साथ हार्मनी में होने चाहिए, तभी आपको डिसीज नहीं होता है। अदरवाइज आपको डिसइज हो जाएगा। तो मेरा जो पूरा जो होलिस्टिक अप्रोच यही है कि मैं मंत्रा मेडिटेशन भी यूज करता हूँ। कोई रिलीजियस होने की ऐसे जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसको हेल्थ पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं। तो ये पूरी नॉन मेडिकल मेटाफिजिकल बात होगी। अब ऐसी मेडिकल चीज क्या ले सकते हैं आपकी, पहली बात तो विटामिन सी का बात किया मैंने कि विटामिन सी ले सकते हैं, लेकिन उसमें ज्यादा साइकिक हो के दिन में 10 बार नींबू का शरबत पीने की जरूरत नहीं है। 1-2 बार पी लिया ठीक है, बराबर है। 10 टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है विटामिन सी की, ऐसे कोई वादा नहीं, क्योंकि विटामिन सी वाटर सॉल्युबल ही है, तो जितना ज्यादा होगा वो पेशाब में निकल ही जाने वाला है। दूसरा है विटामिन डी। ना सी डी कुछ प्रूवन नहीं हुआ है, लेकिन डी लेने से ऐसे भी ओवरऑल फायदे हैं। लेकिन विटामिन डी में फ्यू बातें ध्यान रखने की। विटामिन डी विदाउट कैल्शियम एंड मैग्नीशियम इज यूजलेस। तो अगर आप सिर्फ विटामिन डी लेते हैं और कैल्शियम मैग्नीशियम साथ में नहीं लेते तो उसका कोई फायदा ज्यादा नहीं होने वाला है, सिवा कि आपके बॉडी में कैल्शियम एक्स्ट्रा है तो। और दूसरी बात, जो विटामिन डी है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो अगर आप लेते रहे तो उसकी साइड इफेक्ट होने की संभावना है। तो मेक श्योर कि ओवरडोज मत कर देना खुद को, क्योंकि विटामिन डी फिर लीवर में स्टोर हो जाता है, तो वो बाहर जल्दी इतना नहीं निकलता है जितना विटामिन सी निकल जाता है। और तीसरी बात है, आप जिंक ले सकते हैं। जिंक जो मोस्ट ऑफ द मल्टीविटामिन्स होती है उसमें जिंक होती है। तो जिंक लेने से थियोरेटिकली ऐसा है कि वो जिंक जो वायरस होता है ना, जो वायरस अपने सेल में जाता है ना अंदर, तो उसका जो रिप्लिकेशन कम करता है। लेकिन जिंक की ज्यादा इफेक्ट क्लोरोक्विन होती है तो उसके साथ में होता है, लेकिन जिंक लेने में कोई ऐसा ज्यादा वादा नहीं है, 10-20 ग्राम तक ले सकते हैं। तो ये 3 चीजें आप सप्लीमेंट में ले सकते हैं। और कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या मैं क्लोरोक्विन लेना चालू कर दूं, क्या मैं एजिथ्रोमाइसिन, क्योंकि 2 मेडिसिन है क्लोरोक्विन और एजिथ्रोमाइसिन, तो मैं वो लेना चालू कर दूं? नहीं 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 नहीं, ऐसे साइकिक होके दवाएं लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि क्लोरोक्विन के भी कुछ साइड इफेक्ट है। अगर आप हाई रिस्क है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ कि जिसका एक्सपोजर के चांसेस ज्यादा है, तो अभी तो मैं एक ट्रायल का हिस्सा हूँ कि जिसमें वो लोग स्टडी कर रहे हैं कि क्लोरोक्विन लेने से कोरोना रोक सकते हैं कि नहीं रोक सकते। तो हमारा जो है वो डबल ब्लाइंड ट्रायल है, जिसमें मुझे उन्होंने जो दवाई भेजी है वो मुझे भी नहीं मालूम है कि वो क्लोरोक्विन है या फिर शुगर पिल है, लेकिन वो मुझे लेने की है। एक सेकंड। तो
उसके पहले मैं क्या करता था कि क्लोरोक्विन हर हफ्ते 2 ले ले, क्लोरोक्विन जो मेरे पास इंडिया से ही लाया था वो 2 टैबलेट ले जाए, क्योंकि मलेरिया में हम वो प्रोफाइलेक्टिक लेते थे। जब इंडिया आते थे तो उस टाइम पे हर हफ्ते 2 क्लोरोक्विन की टैबलेट ले लेते ताकि मलेरिया ना हो। तो वो मैं वैसे ही लेता था, क्लोरोक्विन एवरी वीक 2 ले लेता था। लेकिन अभी मैं ट्रायल का हिस्सा हूँ, तो उनका जो पूरा जो प्रोटोकॉल है उसमें मुझे ट्वाइस ए वीक लेनी पड़ती है 2 टैबलेट, तो वो मैं ले लेता हूँ। लेकिन अगर आप हाई रिस्क नहीं है तो वैसे क्लोरोक्विन चालू करने से कोई फायदा नहीं है, तो वो मत लेना। वैसे भी एजिथ्रोमाइसिन का भी है कि एजिथ्रोमाइसिन से कोई ऐसा फायदा नहीं, तो लेने की जरूरत नहीं है। लेते हैं तो ऐसा कोई गैर फायदा ज्यादा नहीं है, थोड़ी एंटीबायोटिक है तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक ले लेते तो उसके ज्यादा कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है वो लेने से। और क्या नहीं लेने का, तो हो सके तो जो एनसेड बोलते हैं हम उसको, NSAID के जैसे कि एस्पिरिन है, आइब्यूप्रोफेन, जैसे कॉम्बिफ्लाम आती है ना, कॉम्बिफ्लाम में आइब्यूप्रोफेन है, तो आइब्यूप्रोफेन वाली दवाई हो सके तो अवॉइड करने का। WHO ने तो ऐसा किया है कि ऐसा कोई वादा नहीं है, लेकिन हो सके तो अगर बुखार आता है तो मेटासिन लेने की, डोलो या मेटासिन लेने की, कि जिसमें आइब्यूप्रोफेन या डाइक्लोफेनाक ना हो, वो लेने का। और दूसरी बात है, जो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन एक आती है उसको हम एस इनहिबिटर बोलते हैं, एस इनहिबिटर, जैसे लिसिनोप्रिल है, लोसर्टैन है। इंडिया में ट्रेड नेम मुझे नहीं मालूम है, लेकिन एस इनहिबिटर ऐसा थियोरिटिकल है कि भाई अगर आप वो लेंगे तो उससे आपको ज्यादा होने की संभावना है, लेकिन कोई प्रूवन नहीं हुआ। अगर आप लेते हैं, अगर आपको कुछ नहीं हुआ है तो लेने में कोई ऐसा कोई ज्यादा वादा नहीं है। तो ये बात हो गई कि आप घर बैठे क्या कर सकते हैं। दवाई के जब तक है तो कुछ ज्यादा दवाई ले नहीं सकते हैं आप। तो अब कि ऐसा हुआ कि भी आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम होने लगा है, दैट मीन्स कि 92% से कम होने लगा, दैट मीन्स कि अभी हॉस्पिटल जाने का टाइम आ गया है। तो आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं, या फिर एज ए ग्रुप अगर आप सोसाइटी में ऑक्सीजन का मशीन भी रेंट कर सकते हैं। आई थिंक मेरा एक फ्रेंड बता रहा है कि पर डे 300-400 रुपए का वो रेंट लेते हैं, कि वो ऑक्सीजन की टैंक भी बढ़ जाते हैं, उसके साथ सबको सप्लाई भी दे जाते हैं। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको मामूली शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और ऑक्सीजन सेचुरेशन 90, 92, 91 के बीच में रहता है और कुछ ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, तो आप घर पे ऑक्सीजन खुद ले सकते हैं और पल्स ऑक्स कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हॉस्पिटल में जगह नहीं है, अगर पैसे नहीं है इतने सारे, तो वो रिजनेबल है। लेकिन अगर ऑक्सीजन 90 से कम होने लग गया, अगर आपको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है जैसे कि डायबिटीज है, अगर आप कैंसर हुआ है, कैंसर की दवाई ले रहे हैं, और कोई भी ऐसी मेजर मेडिकल कंडीशन है, तो फिर ज्यादा रुकने का नहीं, फिर आदमी की जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं है। तो आप ऑक्सीजन ऐसे घर पे ले सकते हैं। तो एज ए ऑर्गेनाइजेशन आप ऐसा ऑक्सीजन का कर सकते हैं कि भी चलो हम 2-4 ऐसा ऑक्सीजन टैंक बसा लेंगे और किसी को जरूरत होगी तो दे देंगे। तो आप रेंट पे भी ले सकते हैं, ऐसा मुझे मालूम, आई थिंक, तो वो भी कर सकते हैं। और तीसरा एक सजेशन, जब मैंने साबरमती के ग्रुप को किया था तो उसको ऐसा सजेशन दिया था कि अगर आपका ग्रुप है, जैसे फॉर एग्जांपल 300 लोगों का ग्रुप है, तो आई एम श्योर कि तुम्हारा पूरा खुद का इंश्योरेंस वाला स्कीम तो ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन कोरोना के स्पेसिफिक आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पर पर्सन 5,000 रुपया का कलेक्शन कर सकते हैं। तो 1.5-2 लाख रुपए का अगर कलेक्शन हो गया को कुछ भी, तो इनिशियल अमाउंट किसी के लिए भारी नहीं पड़ेगी, तो कि चलो अगर कुछ हुआ तो मुझे मेंटली आपको फीस ऐसे मिल जाएगी। तो ये बात सोशल एस्पेक्ट की हो गई। तो अगर आप हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या करते हैं, तो सबका अपना अपना प्रोटोकॉल होता है। कोई लोग ये दवाई देते, कई लोग ये दवाई देते हैं। और आपको भी मालूम है कि कोई भी दवाई अभी 100% प्रूवन नहीं हुई है, तो जो भी देंगे वो चलेगा। तो जब भी मुझे फोन आता है तो बोलते हैं कि ये दवाई देते हैं तो चलेगा, मैं यहाँ चलेगा। तो कौन कौन सी दवाई डॉक्टर देते हैं, ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो देते हैं। तो उसके साथ में अभी नया नया वो रेमडेसिविर आई है, तो वो देते हैं। आई थिंक 40,000 का इंजेक्शन आता है। तो कई लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, तो मैंने बोला कि भाई अगर उसमें कुछ गंवाने का ऐसे कुछ नहीं है सिवाय कि पैसे। तो अगर आपकी जेब गर्म है और तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा उसमें मिरेकल एक्सपेक्ट मत करना कि भाई ये दिया तो पूरा ठीक हो जाएगा, ऐसा जादू होने वाला नहीं है। अगर हो गया तो हो गया। तो रेमडेसिविर देते हैं डॉक्टर। फिर ऑब्वियसली हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं, क्योंकि वो बहुत चर्चा में है और उससे फायदा होने की संभावना है, तो वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं। फिर कहीं हमारे यहाँ विटामिन सी भी देते थे, हाई डोज विटामिन सी देते थे। फिर इंटरल्यूकिन वाली मेडिसिन भी देते हैं, तो वो देते हैं। फिर उसके साथ साथ में अगर निमोनिया होता है, तो ऐसा तो नहीं कि कोरोना का ही निमोनिया है, उसके साथ बैक्टीरिया का निमोनिया भी हो सकता है, तो उसके साथ साथ में एंटीबायोटिक भी दे देते हैं। और फिर उसके साथ साथ में फ्लू की मेडिसिन भी देते हैं, टेमीफ्लू भी दे देते हैं। और क्योंकि पेशेंट बेड रिडन होता है ना, तो फिर ब्लड क्लॉट होने की संभावना हो जाती है, तो फिर ब्लड थिनर भी दे देते हैं, हेपरिन दे देते हैं। तो बहुत सारी चीजें
दे देते हैं, इंटरफेरॉन कई कई बार दे देते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार ऐसा अप्रूव है कि इंटरफेरॉन से भी अच्छा हो सकता है। फिर कई HIV की सब मेडिसिन होती है, तो HIV की मेडिसिन भी कई बार दे देते हैं। तो बहुत सारी दवाइयां देते हैं, और इसमें से क्या सही है क्या गलत है कुछ भी अभी किसी को प्रूवन नहीं हुआ है। तो अगर ये सब भी देता है तो अभी ठीक है, कोई वादा नहीं, क्योंकि जब आदमी वेंटिलेटर पे आ जाता है तो अभी जीवन मृत्यु का क्वेश्चन हो गया, फिर वहां पे तो कुछ भी ट्राई करना ही चाहिए, वो मैं मानता हूँ, एज लॉन्ग एज आपके पॉकेट को अफोर्ड कर सको। क्योंकि ये सब जब ये पूरी दवाई ऐड करेंगे तो मेरे ख्याल से पूरे दिन का 80-90 हजार का बिल आ जाएगा, ऐसा मेरा ख्याल है। क्योंकि वो PPE का चार्ज लगाएंगे, डॉक्टर का चार्ज लगाएंगे, फैसिलिटी का चार्ज लगाएंगे, फिर दवाई का चार्ज लगाएंगे। तो अगर आपको दिन के 50-60 हजार 80 हजार ऐसे परवड़ते हैं, फिर वेंटिलेटर पे है तो वेंटिलेटर का चार्ज आएंगे, तो लेने में कोई वादा नहीं। क्योंकि वो हम उस स्टेज पे आ गए कि कुछ भी करो जान बचानी है, तो फिर करना में कोई वादा नहीं है। तो लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि भी ये डॉक्टर लोग क्या क्या देते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक देते हैं, फ्लू की मेडिसिन देते हैं, रेमडेसिविर देते हैं, क्लोरोक्विन देते हैं, विटामिन C देते हैं, सब कुछ देते हैं। फिर ब्लड थिनर दवाई देते हैं कि स्ट्रोक ना हो जाए, ब्लड क्लॉट ना हो जाए। और फिर कई बार IV फ्लूइड, अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो IV फ्लूइड देते हैं, ब्लड प्रेशर कम होता है तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देते हैं। तो वो सारी चीजें तो हम देते ही हैं। तो ये पूरा डॉक्टर वाला हो गया। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि कोरोना का डर इतना फैल चुका है कि डर तो चला जाएगा एक बार कोरोना। मैंने बोला कि ये परमानेंट तो ठहरने वाला नहीं है, जो आया है वो जाने वाला है, कुछ भी ठहरने वाला नहीं है। लेकिन इसका जाने के बाद अभी मेडिकल का प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन इनकम का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इनकम कई लोगों की बंद हो गई है। तो उसकी वजह से और डर की वजह से कई लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने चालू हो गई। मेरे इमरजेंसी रूम में कई लोग ऐसे आने लगे कि वो सुसाइडल थिंकिंग उनका हो जाए कि भी अभी तो जीना ही नहीं है, जी के क्या करना है। तो कई लोगों को ऐसी इमोशन आने लगेंगे कि भाई कोई लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखाई नहीं, कुछ आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही है। अभी तो मेरे बिल्डिंग में किसी को कोरोना आ गया, कल मेरा हो गया तो मेरा क्या होगा, अगर मैं मर गया तो मेरे बेटे बेटी का क्या होगा। तो ये सब व्हाट इफ सुन सोच के लोगों का दिमाग इतना क्रेजी हो गया है कि लोग कुछ सोच ही नहीं सकते हैं। भाई एंजाइटी डिप्रेशन के प्रॉब्लम लॉट ऑफ लोगों को होने लगे कि सुसाइडल थॉट आने लगी कि भी अब जी के क्या करना है ना। कोरोना रिलेटिवली इतना डेंजरस नहीं है। इसमें क्या हुआ कि ये सोशल मीडिया की वजह से और जस्ट मेन स्ट्रीम मीडिया को बातें करने का ऐसा टॉपिक मिल गया है ना कि उसकी बातें करते ये पूरा साइकोलॉजी इतना हो गया है कि भाई आपको ऐसा ही लगता है कि भाई यही है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। कोरोना से पूरी दुनिया का विनाश होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप पूरा ट्रेंड देखेंगे कि जैसे सबसे ज्यादा पहले चाइना में हुआ था, बराबर, फिर चाइना में अभी ऑलमोस्ट खत्म होने को है, बराबर है, बीच बीच में थोड़ा स्पाइक आता है, ऐसा चलता रहता है। फिर हुआ इटली में, हुआ ईरान में, हुआ स्पेन में, हुआ यूके में, हुआ, सब ऊपर गए फिर नीचे आ गया, फिर अमेरिका में हुआ, सब ऊपर गया, अभी नीचे आना चालू हो गया है। मैंने बोला लास्ट तो नंबर आपको जो टेस्टिंग बढ़ गया है ना, तो उसकी वजह से नंबर ज्यादा दिखते हैं कि हो इतने को पॉजिटिव आया, लेकिन पॉजिटिव डजंट मीन कि आपको डिसीज हो गया। जो डेथ रेट है वो अमेरिका में पहले देयर वर डेज की हर रोज के 2,500 लोग मरते थे, हर रोज। अगर आप मार्च अप्रैल के डेटा देखेंगे ना तो 2-2,500 तो ऐसे ही मर जाते थे रोज। अभी क्या है कि पर डे, अभी मैंने देखा था डेटा कि लास्ट 2-3 डेज में 500-600 देयर वर डेज की 200-300 से ज्यादा नहीं मरते। अब 34 करोड़ की बस्ती में 200-300 मरते, तो है, नंबर है, लेकिन इतने डेंजरस भी नहीं है कि आपको एकदम एंजाइटी और डिप्रेशन आने लगे, क्योंकि धीरे धीरे सब कुछ चालू होने लगेगा। लॉकडाउन का जो टेम्पररी फायदा था कि भाई उससे स्प्रेड कम होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे ये इन्फेक्शन स्प्रेड होगा तो सबको हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी, और फिर वायरस का पूरा उसका जो ताकत है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इतना डरने की बात भी नहीं है। तो वही था मेरी ओर से। तो लेट मी सी इफ एनीथिंग, या तो इन शॉर्ट जो डर गया सो मर गया, दैट्स ऑल। तो बोलो Doctor, you were just superb. First of all, superb explanation of whatever you have said to us. હવે આમાં ડોક્ટર ખબર મેં તમને મેલ બી કરેલો, વેરી સિમ્પલ, ખબર જ નથી પડતી મને ખ્યાલ છે. આઈ એમ આસ્કિંગ યુ પર્પઝલી ઓન ધીસ થિંગ.
ખબર જ નથી પડતી કોઈને શું પ્રોબ્લેમ છે. તાવ શરદી કોમન છે, ઉધરસ કોમન છે બધાને, જે ડોક્ટર બી કહેતા હોય છે. ફેમિલી ડોક્ટર અહીંયા ટચ નથી કરતા તમને. ફેમિલી ડોક્ટર ડઝન્ટ ટચ યુ, રાઈટ? કોઈને સ્વેટ શરીર છે, ફોર એક્ઝામ્પલ 30 દિવસથી મજા જ નથી આવતી, લાઈક ગળામાં. બધાને સાંભળવા જેવી વસ્તુ છે. ગળામાં મજા જ નથી આવતી. ટેમ્પરેચર જેવું ફીલ થાય પણ 96-97 તાવ હોય. congestion slide હોય suppose. Don't know whether you are COVID patient or not COVID patient. I have an experience માટે હું તમને કહું છું. કોઈને 2 દિવસમાં તાવ આવીને COVID પોઝિટિવ આવી ગયું, સપોઝ ફોર એક્ઝામ્પલ. 4-5 દિવસ પહેલા ગ્લેનમાં કે દવા શોધી છે. Is it really worth? Because nowadays people are giving that medicine to that patient. ગ્લેનમાર્કની 5,000 રૂપિયાની 102 પેલી આવે છે દવા, હમણાં થઈ છે. અત્યાર સુધી કોઈ દવા હતી નહીં, બીકોઝ મને એ બી એક્સપિરિયન્સ છે. વન ઓફ માય પર્સન વોઝ હોસ્પિટલાઇઝ, વર્સ્ટ કન્ડિશન, વર્સ્ટ. કોઈ ચેક કરવાના આવે આ તે બધું, લાઈક હાઉ ડુ વી નો કે આપણને લાગ્યું છે કે નથી લાગ્યું? લાગે ત્યારે બહુ લેટ થઈ ગયું હોય છે, ખબર પડે ત્યારે. અને દેન ફેમિલી ઇઝ ઇન અ પ્રોબ્લેમ. અત્યારના હોમ ક્વોરન્ટાઇન થવા દે છે છેલ્લા 4-5 દિવસથી, બાકી ફેમિલીને પણ લઈ જાય છે બધાને, કાઇન્ડ ઓફ ધેટ. સો ડોક્ટર પ્લીઝ એડવાઇસ, ધીસ ઇઝ ઇન્ડિયા in very worst condition. If I want to spend 5 lakhs, I cannot spend 5 lakhs because hospital માં જગ્યા નથી હોતી. And this is a fact. I'm just telling you for everyone, this is a fact. Like very difficult. જાને પોતાના કોઈ માણસે થાય કે પોતાના કારીગરને થાય, પોતાના કોઈને થાય, ત્યારે ફાટી જાય છે એકદમ. લાઈક બોલવું તમે જે બોલે ને બધું એકદમ સત્ય છે બધું, એટલા માટે. So kindly guide everyone. How do we recognize કે અમને જ કોરોના આવ્યું છે? ડોક્ટર આર નોટ ટચિંગ, 8 ફૂટ દૂર બેસીને વાત કરે છે. So please guide us. એટલે એ છે ને, if I understood a question correctly, કે તમને કોરોના થયું છે કે ખબર પડે, એ પૂછવા માંગો છો તમે? હા, sort of. તાવ શરદી ઉધરસ મુંબઈમાં કોમન છે, વાયરલ. તો લોકોને ખબર કેવી રીતે પડે કે તાવ શરદી કોમન બધાને આવે છે? એટલે જ આમાં શું છે કે દરેક તાવ શરદી ઉધરસ કોરોના નથી, અને દરેક કોરોનામાં તાવ શરદી ઉધરસ થતા થાય એવું જરૂરી નથી. એટલે there is no way to find out કે તમને કોરોના છે કે નહીં unless તમે સ્વાબ કરીને ટેસ્ટ કરો તો જ. અમારે શું છે અહીંયા આગળ, તો ધારો કે મને ઈચ્છા થઈ આજે તો હું જઈને ટેસ્ટ કરી આવું, કોઈ મને પૂછવા નથી કેમ ટેસ્ટ કરવા આવ્યો. મારા છોકરાએ પરમ લાસ્ટ વીક જ કર્યો કે એના કોઈ ભાઈબંધને કઈ પોઝિટિવ આવે કે પપ્પા હું કરાવું, મેં તો કરી આવી બેટા, તે તો કરી આવે ને એનો નેગેટિવ છે. એટલે અમારે શું છે કે ટેસ્ટ કરવા માટે કોઈની એવું કઈ પરમિશનની જરૂર નથી કે કોઈને કશું પૂછવાની જરૂર નથી, જઈને ખાલી કરાઈ આવવાનું. ફોર્ચ્યુનેટલી ઇન્ડિયામાં મેં સાંભળ્યું છે કે તમે જાતે ટેસ્ટ કરાવી શકતા નથી, એટલે ટેસ્ટ કર્યા વગર કહેવું મુશ્કેલ છે. પણ મેં કીધું એ પ્રમાણે તમે બધું એડ કરતા જાઓ ને, કે ધારો કે તમે કોઈના સંપર્કમાં આવે કે જેને કોરોના થયું છે, પછી તમને થયું, એટલે 14 દિવસની અંદર થાય ને તો ખાસ કે ભાઈ સંપર્કમાં આ જાય ને 4-5 દિવસ પછી ચાલુ થયું, તો પછી અહીંયા ગળામાં દુખે, પછી ઉધરસ આવી, સ્પેશિયલી શ્વાસમાં તકલીફ પડવાનું ચાલુ થાય ને એટલે શક્યતા વધારે કહેવાય. પણ શરદી ઉધરસ ખાસ સામાન્ય થયા તો ધારો કે કોરોના હોય પણ તો કશું ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમને ખાલી થોડો તાવ આવ્યો, થોડું શરદી ઉધરસ થયું તો કોરોના હોય કે કોરોનાનો ભય હોય, ઇટ ડઝન્ટ મેટર નાવ. તમે ટેસ્ટ કરાવો, તમને ખબર પડે કે હતું કે નતું, પણ એ ખબર પડવાથી બીજો કશો ચેન્જ થવાનું નથી. ચેન્જ ક્યારે થાય કે તમારે છેક નીચે જવા મળે, પછી તમને થાય કે જવાના જ છો. એ વખતે તમે હોસ્પિટલમાં જવાના છે, ત્યાં ભાઈ તમારો ટેસ્ટ કરશે એ લોકો કે ભાઈ તમને કોરોના છે કે નહીં. અને દવામાં ઘરે શું કરી શકાય, તમે આઈ થિંક ધેટ વોઝ યોર સેકન્ડ થિંગ, કે ઘરે શું કરી શકાય. તો મેં કીધું એ પ્રમાણે કે ભાઈ ઇટ હેઝ ટુ બી હોલિસ્ટિક અપ્રોચ, અને એ આ માત્ર કોરોના પૂરતો જ સીમિત ના રહેવો જોઈએ કે ભાઈ પછી શહેરની શિખામણ ઝાંપા સુધી એવું ના રહેવું જોઈએ કે ભાઈ ના અભી આપકો માલુમ પડી ગયા કે ભાઈ ऐसा ऐसा करके अपने शरीर, as long as you are strong nothing will touch you. Okay, so that should be your main goal कि भाई कैसे कोरोना को करना है, उसकी वो भूल के मैं खुद को कैसे करूं वो करना है. मितेश भैया, go ahead, you have some question. How is Glenmark new medicine? Favipiravir, I think you're talking about sorry, yes. Favipiravir. Well, yes. if I talk in the medical term, એનો જે નાનકડો ટ્રાયલ હતો, એ લોકો ટ્રાયલ કર્યો હતો. હવે it was a non-randomized trial. Non-randomized trial એટલે શું કે ધારો કે હું જે સ્ટડીના ભાગ સ્વરૂપે છું, એમાં કોમ્પ્યુટર ડિસાઇડ કરે કે મને કઈ મેડિસિન મળશે. જ્યારે એ લોકો જે ટ્રાયલ કરે ને એમાં એમને ખબર હતી કે આને જ આ મેડિસિન આપવાની છે, એટલે એને અમે કહીએ બાયસ કહેવાય. કે મને ખબર હોય કે ભાઈ મિતેશભાઈને મેં ફેમિપીવીર આપી છે અને પેલાને આપી છે. હવે મિતેશભાઈને મારે ફેમિપીવીર આપી હોય તો હું નક્કી કરું કે મિતેશભાઈનું રિસ્ક કેટેગરી કેવી છે
કે લો રિસ્કમાં એનું કારણ કે આ બધા શું ડ્રગ કંપની સ્પોન્સર ટ્રાયલ હોય એટલે ड्रग कंपनी उनका पूरा मतलब क्या होता है कि उनको लास्ट में ऐसा साबित करने का होता है कि ये दवाई काम करती है बिकॉज दैट इज हाउ दे मेक मनी એટલે એ જે ડ્રગ કંપનીનો ટ્રાયલ હતો ને એટલે એનો इट वाज अ नॉन रेंडमाइज એટલે हमारी भाषा में જ્યારે हम जब देखते हैं ना किसी भी ट्रायल को अगर नॉन रेंडमाइज होता है ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि रेंडमाइज नहीं किया दैट मीन्स आपने अपने आप डिसाइड किया कि किसको कौन सी दवाई देने की और फिर बोला कि मैंने इसको ये दवाई दी है उससे अच्छा हो गया लेकिन आपको मालूम ही था उसका अच्छा होने वाला है तो दैट वाज हिज फर्स्ट फॉल्ट પછી उसको दूसरा बोलते हैं उसको ओपन लेवल स्टडी बोलते हैं दैट मीन्स ऑल द जो मेरा भी ट्रायल है ना उसमें जो रिसर्चर है ना उसको भी मालूम नहीं है कि मुझे कौन सी दवाई मिलती है मुझे भी मालूम नहीं है मुझे कौन सी दवाई मिलती है जब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद में अल्लाउद्दीन का जादू चिराग खुलेगा उसके बाद में मालूम पड़ेगा कि किसको कौन सी दवाई मिलेगी तो ये जो फेमिपिविर है ना उसमें वो नहीं था और उन्होंने क्या किया था कि उस जो भी सीरियस पेशेंट है ना उसको एक्सक्लूड कर दिया था अब बात यह है कि ये दवाई वो सीरियस पेशेंट को ही जरूरी है अब मैं किसी को रिसर्च कर रहा हूं और उसमें मेरे जैसे हेल्थी पेशेंट को ये दवाई देता हूं और फिर बोलता हूं कि हाँ मैंने राकेश को दवाई दी और राकेश को अच्छा हो गया अरे भाई राकेश को तो वैसे ही अच्छा होने वाला था तो उन्होंने ट्रायल ऐसा किया कि जिसमें जो सीरियस पेशेंट है ना उसको निकाल दिया कि नहीं उसको हम नहीं देंगे उसका हम ट्रायल नहीं करेंगे वो बहुत सीरियस है अरे भाई जो दवाई की जरूरत है वो सीरियस पेशेंट के लिए ही है तो वो उन्होंने उनपे निकाल दिया You said zinc 8 to 10%. People are suggesting here zinc 50 grams. right Zinc 50 grams once in a day right for a immunity. So good doctor suggests zinc 50 gram and vitamin C. हाँ वही Is it लेना enough? Is it enough? हाँ हाँ वही मैंने बताया ना पूरा कि विटामिन सी जिंक और विटामिन डी ले सकते हैं क्योंकि उसमें कोई ज्यादा Zinc नुकसान नहीं है 50. हाँ जो भी उसका कोई फिक्स डोज नहीं है अगर मेरे दिमाग में 10 आएगा तो मैं 10 बोलूंगा किसी के दिमाग में 30 आएगा 30 बोलेगा कोई 50 बोलेगा Okay. सब सबकी Thank you, doctor. हाँ Thank you, doctor. तो वो जो ट्रायल था ना उसमें रिलायबल ट्रायल नहीं था लेकिन दवाई कंपनी वाले क्या करते हैं कि वो उसको बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे और अभी क्या कि डर इतना है ना कि आप कुछ भी देंगे लोग ले लेंगे 5,000 रुपए की टैबलेट भी ले लेंगे और 25,000 की भी ले लेंगे सब पैसा का खेल है हाँ मेरा सबसे पहले तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ बिहाफ ऑफ स्वर सबके इतना अच्छा आपने एक्सप्लेन किया है और एक एमडी होने के नाते आपने जिस तरह से वो योगा में और उसमें भी इतना डीपली बात बताई कोई चीज तो ऐसी है मैं योगा करता हूँ कल से इम्प्लीमेंट पे जाऊंगा खैर दूसरी बात यह है कि जहां तक आपने बताया कि कोरोना की एंट्री होती है वो नोज आई या मुंह के अंदर से ही होती है राइट ये उसके अलावा नहीं हो सकती है हाँ चमड़ी से नहीं जाता है जनरली नहीं यहीं से नहीं ना ओके हाँ तो हम लोग वही सोच रहे कि बार बार हाथ धोने का क्यों बोल रहे हैं डॉक्टर लोग क्या होता है कि आप वहां पे टच करते हैं लेकिन फिर वो जाता है ना हम नाक पे अट जाते हैं Yes. मुंह पे अट जाते हैं इसलिए कोरोना की एंट्री की यही मेन जगह है ना हाँ, उसको हाँ। मेन ध्यान में रखना है लेकिन हाथ में से फिर नाक में जाता है आंख में जाता है मुंह में जाता है राइट ओके सर ओके थैंक यू सो मच ओके वेलकम मेरा सवाल ये है कि मुंह और नाक से तो जाएगा वो पता चलता है लेकिन आंख से जाता है वो समझ में नहीं आ रहा है हमको ये बोला गया है कि आप सनग्लासेस पहन के रखो तो कोई दिक्कत नहीं वो प्रूवन नहीं है लेकिन आंख में क्या है तो वो जो लैक्रिमल फ्लूइड होता है फिर आंख में क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है ना यहाँ से अंदर कनेक्शन होता है आंख में से नाक का कनेक्शन होता है अगर आप जब रोते हैं तो आपके नाक भी ऐसे हो जाता है ना नाक में से थोड़ा निकलता है ना करते हैं ना रोने के टाइम पे तो बिकॉज आंख में यहाँ से अंदर नेजोलैक्रिमल डक्ट होती है वो कनेक्टेड होती है आपका लेंगे तो चेतन भाई आपका जो सनग्लास का सवाल है ना वैसे सनग्लास से कोई ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं मिलता है क्योंकि जो ग्लासेस होते हैं ना वो ऐसे ग्लासेस से नहीं होता है उसका पूरा साइड में से भी कवर होना चाहिए जो हम हॉस्पिटल में पहनते हैं ना तो आपके मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए आप सनग्लास पहन सकते हैं लेकिन ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि कोई नहीं होगा तो कोई ज्यादा उसका इतना यूज नहीं है डे टू डे प्रैक्टिकली नहीं यूज है मेडिकली बोल सकते हैं कि भाई आपने ग्लासेस पहने तो आंख में नहीं जाएगा लेकिन ग्लासेस में यहाँ पे तो पूरी जगह रहती है ना साइड में तो ये तो पूरा खुला ही है આપણે તો દરવાજા ખુલ્લા ને કાળે ડૂચા કહીએ ને એના જેવું છે યા થેન્ક યુ ડોક્ટર ચલો અમારા ડોક્ટર સાહેબ મારો એક પર્સનલ પ્રોબ્લેમ ની વાત કરવી છે તમારી સાથે એટલે જો પર્સનલ પ્રોબ્લેમ જો કોરોનાને લગતો હોય તો આપણે અહીંયા ડિસ્કસ કરીએ અને કોરોના લગતો ના હોય તો તમે મને પર્સનલી મેસેજ કરી શકો અને વાત કરી શકાય આપણે
મને એકચ્યુઅલી લોકડાઉનમાં જે પ્રોબ્લેમ થયો હતો અને હું ગભરાઈ ગયો હતો. હા બોલો. આઈ બીન હું 4 દિવસ માટે મારા નેટિવ પ્લેસમાં ગયો હતો. ત્યાં આવ્યો ચેકઅપ ફોર 55 days. સાંભળો. હા હા અને જબરજસ્ત મારું 270 બીપી હાઈ થઈ ગયું હતું એકદમ. બરોબર. અને ત્યાર પછી મને જે આર્કાબિન નામની દવાનો કોર્સ કરી આવેલો, આર્કાબિન હા હા બરોબર. બીપી માટે. અને આર્કાબિન મગજને અસર કરે છે. 6 માંથી 4, 4 માંથી 3 અને 2 ઉપર આવ્યો છું અત્યારે. બરોબર. એટલે હવે એને લગતું કઈ મને તમારી પાસે ઘણો જ્ઞાનનો ભંડાર છે. એટલે આપણે એવું કરીએ અનિલભાઈ, હું છે ને હા. પંકજભાઈ જોડેથી મારો નંબર લઈ લેજો અને મને પર્સનલી ફોન કરજો, કારણ કે આપણે અનિલભાઈ. ઓકે. હા ઘણા બધા લોકો છે ને, એટલે આપણે એમનો ટાઈમનો પણ આપણે ખ્યાલ રાખીએ ને, એટલે એ લોકોને પછી લોકડાઉન ના હિસાબે હું મારા ડોક્ટરોનો કોન્ટેક્ટ નથી કરી શકતો. મારા મેઇન એના હિસાબે અત્યારે આઈ ગોટ ધીસ ઓપોર્ચ્યુનિટી. એની ઉપર આઈ વિલ ડેફિનેટલી ફોન યુ. હા, એટલે પંકજભાઈ જોડે નંબર લઈને મને ડાયરેક્ટ ફોન કરજો તમે, એટલે આઈ વિલ ટોક ટુ યુ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ. ઓર હવે બોલ. ડોક્ટર સાહેબ, પહેલા તો થેન્ક યુ, તમારો કિંમતી સમય તમે આપ્યો અમારી માટે. યુ વેલકમ. Thank you. ફ્રેન્ડ ભૈયા. અને બીજું સવાલ એ પૂછ્યો છે સાહેબ હા બોલો. કે આપણે મેક્સિમમ આવા સમયની અંદર કયા ફૂડનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, કયું ફૂડ લેવું જોઈએ? એવું કોઈ સ્પેસિફિક મેડિકલી એવું કશું છે નહીં. મેં કીધું પ્રમાણે તમે વિટામિન સી વાળું ફૂડ અને પ્રોટીન ઓછું હોય તો પ્રોટીન થોડું વધારે લેવાનું, કારણ કે એનાથી તમારે એન્ટીબોડી બનાવવામાં મદદ રહે. બાકી હા સર. એવું કઈ જાદુઈ ફૂડ નથી કે જેનાથી તમારી ઇમ્યુનિટી વધી જશે કે કોરોના નહીં થાય, કોઈ ગેરંટી ના આપી શકે. બાકી જે પણ બધા કહે એ બધા તીકડામાં દરેકના મગજમાં જે તુક્કા આવે રેગ્યુલર ફૂડ પ્રવીણભાઈ, રેગ્યુલર ફૂડ. હા રાઈટ સર. બીજું એક નાનો ક્વેશ્ચન સર, વધારે સમય નહીં લઉં. ના વાંધો નહીં. હલો, બધા સ્ટોપ થઈ ગયા છે. હકીકતમાં તો મેડિસિન હજી શોધાણી જ નથી, બરોબર? હા યા કરેક્ટ. બધી હોસ્પિટલ આવા 14-15 લાખ રૂપિયા શા માટે લેતા હશે સર? જસ્ટ જાણવા માટે. પ્રવીણભાઈ, હવે ઈ ટોપિક નો કોઈ મતલબ નથી. ઈ બધા પોતપોતાના હિસાબે પૈસા લે છે, એમાં આપણે કઈ કરી ના શકીએ. હા ટીનાબેન, કેમ છો? નમસ્તે રાકેશભાઈ. ડોક્ટર સાહેબ, ખૂબ ધન્યવાદ તમારો અમારા સ્વર તરફથી પણ. અને મારે ખાલી એટલું જ જાણવું છે કે આ કોરોના ક્રિએટેડ છે કે વાયરલ છે? અમારા બિલ્ડિંગમાં એટલા બધા લોકો આના ઉપર એમ કે છે તમે લોકો ખોટા ડરો છો, કોરોના છે જ નહીં, તમારે ક્યાંય જવાની, તમે આ બધું ડરો છો એટલે તમારી આમ, એટલે બધા લોકો એમ કે છે કે તમે લોકો ખોટા લોકડાઉનમાં છો, બધે જવું જોઈએ. શું ખરેખર શું મારે માનવું? કારણ કે હું તો 3 મહિનાથી નીચે જ નથી ઉતરી, પણ અમારા બિલ્ડિંગ વાળા બધા એમ કે છે કે ટીના ડરપોક છે ને નથી ઉતરતી ને કોરોના છે જ નહીં ને ડરવાનું નહીં. તો શું સાહેબ, શું કરવું જોઈએ? આમાં છે ને મલ્ટિપલ લેયર્સ છે તમારા ક્વેશ્ચનમાં. પહેલો પ્રશ્ન તમારો એ હતો કે કોરોના વાયરસ ખરેખર છે કે બનાવવામાં આવેલો છે, બરોબર? હા હા હા, એ એક જાતનો પોલિટિકલ ક્વેશ્ચન છે કે એમાં પછી ચાઇના વિશે હું બોલવાનું ચાલુ કરું કે ના કરું, એટલે એ વસ્તુ સ્કીપ કરીએ. મને ખાલી એટલું કહી દો કે કોરોના છે કે નહીં, તો હું મારી 72 જણની આખી સોસાયટી છે, એમાં હું એ લોકો સાથે બહુ જ હળીમળીને રહું છું, તો મારે એ લોકોને ખાલી સમજાવવું છે કે કોરોના છે કે નહીં. હાલે હું તમને એ ડિટેલમાં સમજાવું કે કોરોના, પહેલી વસ્તુ કે ચાઇનાએ બનાવે કે ના બનાવે એ વસ્તુ આપણે બાજુમાં મૂકી દઈએ છીએ અત્યારે. પણ જે વાયરસ જે છે એ વસ્તુ હકીકત છે, એમાં ડિનાય ના થાય. પણ જેટલો ડર કરવામાં આવ્યો છે એટલો ભયંકર પણ નથી. ઓકે. કારણ કે તમે સ્ટેટિસ્ટિકલી જોવો તો દુનિયાની 7 અબજ ઉપરની વસ્તીમાંથી કેટલા જણને થયો, એમાંથી કેટલા રિકવર થઈ ગયા છે, એમાં કેટલાને એસિમ્પ્ટોમેટિક છે, અને એમાંથી તમે મૃત્યુનો આંકડો જુઓ તો એકદમ નહીવત છે, 1% જ છે. એટલે 1%. હા, <1%. હા, એટલે એ રીતે ડરવાની જરૂર નથી. એટલે આમાં શું છે કે વાયરસ છે એનો ડર ખોટો છે. કરેક્ટ. હા, એટલે થાય જેને થાય બરોબર છે. 4% જે લોકો મરી જાય છે, અમુક જે મરી જાય છે, એમાં હકીકત છે, એમાં નથી એવું નથી કહેતો. પણ તમે જો એ લોકોને તમે સ્ટડી કરો ને તો તમને ખબર પડશે કે મોટા ભાગના લોકો 60 થી ઉપરના હતા, મોટા ભાગના લોકો અહીંયા અમેરિકામાં જતા ને એકદમ જાડિયા પાડિયા હતા, અને મોટા ભાગના લોકોને ડાયાબિટીસ હતો કે લંગ પ્રોબ્લેમ હતા કે સ્મોકિંગ હતું. આ જ તમને હિસ્ટ્રી જો તમે આજુબાજુમાં તમે તપાસ કરશો તમને આ જ જોવા મળશે. એટલે તમને આમાંથી કશું ના હોય
તો પછી મુન્નાભાઈ ની ભાષામાં કહીએ તો ટેન્શન લેને કા નહીં, કેરમ રમવાનું, જ્યુસ પીવાનું અને મજાની લાઈફ. મજાની લાઈફ. અત્યારે ડોક્ટર સાહેબ બધા ઈ જ કરવું પડે છે, બીજું કઈ કામ છે જ નહીં. એટલે યુટ્યુબ જુઓ, ફેસબુક જુઓ અને શાંતિથી ખાઈ પીને મજાની લાઈફ એન્જોય. સાચી વાત. Does sanitizer work? થેન્ક યુ ડોક્ટર Does sanitizer work? હા Does sanitizer work? sanitizer? કે ખાલી ફેશન માટે? ના, સેનિટાઈઝર સેનિટાઈઝર ડોક્ટર આ એટલા માટે હું આ પૂછું છું કારણ કે આઈ નો સમવન, લેટ મી ટેલ યુ વેરી ક્લોઝલી, 3 મહિનાથી હિનાબેને કીધું નીચે નથી ઉતર્યા. નંબર 1, સેનિટાઈઝર ઘરની બહાર લગાડ્યા છે, સેનિટાઈઝર ટ્રે ઘરની બહાર લગાડી છે, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી નાકમાંથી, મોંમાંથી, કાનમાંથી ક્યાંથી ઘૂસ્યું ખબર નથી. વેરી સિરિયસ પર્સન, જેમ ટીનાબેને કીધું એ પ્રમાણે પણ લાગી ગયું. તો આ બધાની જાણ માટે, કારણ કે સેનિટાઈઝર બધા લે કરે છે, બધું કર્યું તો પણ લાગી ગયું. એટલે વોટ ટુ ડુ તમારા અમેરિકાના અનુભવ પ્રમાણે? એટલે આમાં શું છે કે આપણે સિમ્પલ છે કે તમે સૂરજને ઢાંકી ના શકો, પણ તમારા આંખે ચશ્મા પહેરી શકો, બરોબર? આપણે ગરમીથી બચવું હોય તો. એટલે એના માટે તમે કોરોના કશું કરી શકો નથી, પણ સેનિટાઈઝર થી કોરોના મરે છે એ વાત બરોબર છે, પણ પછી એટલા સાયકિક થવાની જરૂર નથી કે ભાઈ 24 કલાક હાથ ધોતો કરો ને બધે ચારે બાજુ સેનિટાઈઝર લગાવો ને એવું કરો. કારણ કે એની કોઈ ગેરંટી નથી કે તમે સેનિટાઈઝર વાપરશો તો નથી જ થવાનું, કોઈ ગેરંટી નથી. અને બીજું શું છે કે હમણાં અમેરિકામાં એ લોકોએ 9 જાતના સેનિટાઈઝર ની સામે વોર્નિંગ લખી છે, કારણ કે એ લોકો હવે બધા શું છે કે જ્યારે ડિમાન્ડ વધી જાય ને એટલે મળદા પર મિજબાની કરનારા બધા આવી જાય. એટલે મળદા પર મિજબાની કરનારાએ શું કર્યું છે કે જે એમનો રેગ્યુલર સેનિટાઈઝરનો આલ્કોહોલ જે હોય ને એ એક્સપેન્સિવ હોય, એટલે એ લોકો એમાં મિથેનોલ નાખવા માંડ્યા છે એ લોકો. એટલે અમારે અમેરિકામાં 9 પ્રોડક્ટ એવી મેક્સિકોથી ઇમ્પોર્ટ થયેલી હતી કે જેમાં હાર્મફુલ આલ્કોહોલ હતો, જે આપણે લઠ્ઠો કહીએ ને એ પ્રકારનો. એટલે પછી એવું થાય કે પછી લોકો સેનિટાઈઝર બધા ગાળા થાય ને એટલે જ્યારે ધુતારા જે હોય એ લૂંટવા બેઠા જ હોય, એટલે એ લોકો બધા ભેળસેડિયા બધા સેનિટાઈઝર બનાવશે અને પછી એમાં શું આવશે ભગવાન જાણે, અને પછી થઈ જાય. પ્લસ તમે બહુ ઘસ કરો ને એટલે 2 વસ્તુ થાય. એક તો તમારા શરીરમાં સ્કિન એલર્જી થવાના ચાન્સીસ વધી જાય, અને બીજી વસ્તુ કે અમુક બેક્ટેરિયા તમારા શરીરમાં કામ ના હોય એટલે જ ભગવાને મૂક્યા તમારી ચામડી પર. ભાઈ તમે એને ઘસીને કાઢી નાખો એટલે તમારા ઉપરથી ઇમ્યુનિટી ઘટી જાય. તમે દરેક વસ્તુ છે ને માપમાં આપેલું. આપણે નથી ગુજરાતીમાં કહેવત કે રસના છે ને ચટકા હોય, કુંડા ના હોય, એ રીતે સેનિટાઈઝર ના ચટકા હોય, કુંડા ના હોય. રાઈટ. સરસ. એનીબડી? I think so, Dr. Sahib. With this conversation, we can wind up the webinar. Yes. Once again, on behalf of SWR, we are very, very, very thankful to you. જ્યારે આપણે મળવાનું થશે પર્સનલ ત્યારે ચોક્કસ મળશું. અને આટલું સરસ ગાઈડન્સ આપ્યું બદલ SWRના દરેક મેમ્બર તરફથી, કમિટી મેમ્બર તરફથી, બધા તરફથી we are Thank you very much. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Sahib. I enjoyed. Thank you so much, doctor. Thank you. Thank you so very much. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Bye. Thank you so much, Thank you, doctor. sir. Bye. Thank you very much. Bye. Thank you, sir. Bye. થેન્ક યુ વેરી મચ ડોક્ટર સાહેબ. Okay, bye. Thank you. Okay, હું પેલું લાઈવ સ્ટ્રીમ સ્ટોપ. Thank you, Swar. Okay, Thank you bye. everyone for your mehunat. Thank you, sir. Thank you, Rakesh Thank bhai. you. Welcome everyone. Bye, કાનજીભાઈ. Bye bye. Rakesh Bye. bhai. Bye. Thank you, sir.